A very good afternoon to one and all present here. I, Pramod Kumar Pandey, Assistant Professor, DME Media School, welcome Mr. Manish Azad sir from AIR FM, Bin. I also welcome Dr. Amrish Saxena, Dean DME Media School, and Dr. Susmita Bala, Head DME Media School, and all faculty members and students of DME Media School, third semester. Delhi Metropolitan Education is an A-grade premier educational institute affiliated to Guru Gobind Indraprastha University, New Delhi, and approved by the Bar Council of India. The institute offers BBA, BA LLB, BBA LLB, and BA GCSE programs. DME believes in imparting world-class education to its students while training them to develop and enhance their skills. This education and training enables them in taking up challenges of the industry and creating a space for themselves with their competence and vigor. DME Media School is one of the most promising media institutes in the country, offering BA in Journalism and Mass Communication. It is recognized as a school focused on the growth of its faculty members and students through academic and co-curricular activities. Session orientation program SOP is being conducted by Media School every year for semester 3rd and semester 5th students. We invite experts from the industry to speak on the topics related to the curriculum of BA JMC and give students insight into the media industry. Today, we have with us Mr. Manish Azad sir, and I would like to take a moment to introduce sir. To speak about Mr. Manish Azad sir, it is anything like showing light to the sun. Today, on the strength of his talent, he is known as one of the best radio professional in India as well as abroad. He is famous radio jockey of FM Rainbow 102.6 MHz and does very famous show of Good Morning India in the morning slot from 7 to 10 AM. So you are the part of very prestigious parade of India, that is 26th January, and you were part of the sports commentary team for the last many years. Sir has done more than 2,000 shows in India and abroad as well. And sir has been called for special anchoring for Star Plus of famous serial Ye Hai Mohabbatein, and done one reality show anchoring for Ishwar TV of show Flame of Dance, and from the last several years being anchor, sir has done around 200 marriages, all of them high profile marriages, you can say big fat weddings. You must have also seen sir on many known serials like CID, Crime Patrol, Ye Hai Mohabbatein, Sapne Suhane Ladakpan Ke, The Hero, Maryada, Atmaja, The Cherry on Top, Nipun, Padam Shri, Desi Ghee, etc. From time to time, sir has been giving radio industry information and knowledge to well-known institutions of the country like Delhi University, Bharatiya Vidya Bhavan, Hansraj College, Janki Devi College, Shyamlal College, and many other universities and colleges to this list, and many more renowned universities across India and also abroad. There are hardly any newspaper or magazine left where we have not seen the interview of Manish Azad sir. So till date, he has several awards to his credit, and he's a big name in the industry, and we are very delighted and very grateful to have you with us today, sir. And I'm sure that it is going to be a wonderful session, for all the students. It will be a delight. So before we formally hand over the stage to sir, I would like Amrish Saxena sir to please come forward and say a few words, and then we'll felicitate sir, and then the stage will be all for मनीष आज़ाद जी और निश्चित रूप से ये जो सेशन है हमारा रेडियो के बारे में, ये काफ़ी अच्छा होने वाला है। मुझे रेडियो एक ऐसा माध्यम है जो जितने भी माध्यम आप पढ़ते हैं, जितने भी मीडिया प्लेटफॉर्म से आप काम करते हैं, रेडियो से ज़्यादा एक्सेसिबल, इससे ज़्यादा आसान और इससे ज़्यादा प्रभावी कोई भी दूसरा माध्यम नहीं है, क्योंकि ये आवाज़ के माध्यम से कम्युनिकेट करना और अपनी बात को एम्फेटिकली लोगों को पहुँचाना, ये जितना मुश्किल है उतना ही आसान भी है, बिकॉज यू आर नॉट डिपेंडेंट too much on technology for the communication purpose. Obviously, whether it's terrestrial or satellite, all that communication tools, communication technology is required. But then when it comes to speaking and connecting with the people through speech, so that's the only thing which is there with radio. So कोई additional ऑपरेटर्स आपके पास नहीं है लोगों तक पहुंचने के लिए, और वही सबसे बड़ी ड्यूटी है
रेडियो की। और हमारे साथ मनीष आज़ाद जी हैं जिनका अपना वर्सेटाइल एक्सपीरियंस है, क्योंकि जिस तरह से अब टेक्नोलॉजी आ गई है उस समय उसके में बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स रेडियो के अंदर पॉसिबल हैं। आज से 10 साल 20 साल पहले वो सब संभव नहीं था, और ख़ासतौर पे जो हमारी कन्वेंशनल ब्रॉडकास्टिंग है वो और पॉडकास्टिंग तक आ गई है। और उसका जो सबसे ख़ास उसका पहलू है वो ये है कि अब हम फॉर्मेट्स के साथ बहुत तरह के एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं, प्रेजेंटेशन के साथ बहुत तरह के एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। तो रेडियो अब नई लाइफ में, नई टेक्नोलॉजी में और भी ज़्यादा लाइवली मीडियम हो गया है। और हम उम्मीद करते हैं कि सबका पार्टिसिपेशन होना चाहिए, क्योंकि तुम सारे लोग रेडियो को एज ए सब्जेक्ट पढ़ भी रहे हो। तो जितना पार्टिसिपेटरी होगा, आई बिलीव द सेशन विल बी मोर बेनिफिशियल एंड फ्रूटफुल। थैंक यू। Thank you, sir. I would now like to request Bala ma'am and Amrish sir to please state, sir, a small token of gratitude and admiration. धन्यवाद। वैसे मेरे को ऐसा लगता है कि शब्द छोटा सा है। उससे पहले मैं शुरू करूं, मैं अपने बारे में थोड़ी सी एक चीज़ बता दूं कि मैं इंस्पेक्टर जरा दूजे किस्म का हूं। बेटा क्या नाम है आपका? साकिना। अच्छा, फ़ोन दोबारा बेटा बंद कर दो, ये तुम्हारा हाथ में नहीं आना चाहिए, ठीक है? आपका क्या नाम है बेटा? फ़ोन बेटा बंद ही होना चाहिए, ठीक है? आपका क्या नाम है? हाथ में नहीं आना चाहिए दोबारा फ़ोन बंद, ऐसे। अच्छा, कुछ लोगों के फ़ोन ऐसे भी होते हैं कि जो कहते हैं सर हमने तो साइलेंट किया था सर, पता नहीं कैसे बच गया। उस वाले माध्यम से बाहर आ जाओ, मुझे वो नहीं चाहिए। सर मेरे हाथ पे छोड़ दो आप, ये तो फिर भी बहुत छोटा सा सेशन है और छोटे से मतलब स्ट्रेंथ है ये। और मेरा नाम मनीष आज़ाद। जब जन्म हुआ था तो मम्मी पापा ने नाम रखा था मनीष। मेरे दादाजी आज़ाद हिंद फ़ौज में थे, तो नाम आज़ाद ऐसे सरनेम रख लिया। लोगों ने प्यार इतना दिया कि मुझे वो रेडियो करके वो रेडियो वाला बना दिया। तो लोग आज मुझे मनीष आज़ाद रेडियो वाला के नाम से, आपके प्यार के माध्यम से और मान सम्मान से देश विदेश जहाँ जाता हूँ रेडियो वाला के नाम से लोग बाग जानते हैं। अब कभी भी मतलब लोग कहते अपने आप में बड़ा कहते हुए बड़ा फ़ख्र सा होता है कि सर आप मुझे गूगल कर लीजिएगा, तो हम भी ज़रा शान से कहते सर एक बार जरा हमारा नाम भी गूगल करके देख लीजिएगा, पता लगेगा आपको। तो मनीष आज़ाद रेडियो वाला और लेटेस्ट अभी मैं इसके लिए बहुत पीछे हूँ। और बहुत अच्छा ये है कि मतलब जो ये प्रोफाइल पढ़ी गई है बेसिकली ये विशाल यार 3 साल पुरानी है, और ये मैं इस मामले में बड़ा पीछे हूँ कि मैं को प्रोफाइल भेज दीजिए सर, और ज़रा कुछ प्रोफाइल चाहिए होती सर, वो भेजनी होती है सर, आगे ज़रा समझा करो आप, भेज दी। इसके अंदर लेटेस्ट एक चीज़ ऐड नहीं है, और मैं पूरे वर्ल्ड में एक अकेला ऐसा आरजे हूँ जो वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड से सम्मानित है। और मैं फेसबुक लाइव किया करता था, और फेसबुक लाइव शोज़ करते करते 100, 200, 300, 400, 500, 600 शोज़ ऐसे हो गए नॉन स्टॉप, जो मैंने रोज़ाना रात 9 बजे से 10 बजे तक मैं किया करता था। और जिसके कारण इसके लिए मुझे वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड वालों ने, लंदन की संस्था, उन्होंने मुझे सम्मानित किया। इसके पीछे 2 बड़े ख़ास रीज़न हैं। कोरोना सबको पता हुआ, आपकी फैमिली में आपके जानने वालों में किसी न किसी को कोई कोरोना से ग्रसित हुआ होगा, ठीक है? मैं दोनों बारी कोरोना हुआ, लेकिन मैंने एक बार भी शो बंद नहीं किया, पहली चीज़। दूसरी चीज़, 21 जनवरी 2021 का वो रात, मैं कहूँगा वो रात थी कि जब मैं शो के लिए तैयार हो रहा था, और ये मैं, क्योंकि मेरी आदत है, मैं सर का बड़ा रिगार्ड करता हूँ इस मामले में, कि कुछ संस्कार ऐसे मिले कि अगर आप जिस गद्दी पर बैठने के लिए जा रहे हो, लाला देखें कभी कंपनी लाला दुकान पे जाते हैं पहले वो गद्दी को सलाम करना, मेरी भी आदत यही है। मैं जिस हॉट सीट पर बैठने के लिए वो शो करने के लिए जाता था, तो मैं उसके लिए नहा कर पूजा करके, तो बस नहा के मैं बाथरूम से निकला था कि ये पैर निकल के मेरा इधर आ गया था। 3 महीने प्लास्टर मेरे चढ़ा रहा, बावजूद उसके मैंने शो बंद नहीं किया, और मैं ये वाला पैर सोफे पर रखकर एक पैर से भी शो किया करता था। ताली बजाओ। तो एक बेसिकली जो जुनून है वो काम के प्रति ऐसा ही है
और ऐसा कोई भी प्लेटफॉर्म, ऐसी कोई जगह, ऐसी कोई इंडस्ट्री नहीं है जहां पर आप ये बोलो कि सर मेरे लायक काम नहीं है। मैं ये कहता हूं कि आप काम करने वाले बनो, हम काम देने वाले बनेंगे। रेडियो इंडस्ट्री एक ऐसी इंडस्ट्री है जहां पर 400% का ग्रोथ मिलता है। एकमात्र ऐसी इंडस्ट्री है, एकमात्र। लोग चाहिए, आगे आओ और फिर बताओ। जैसे इन 3 लड़कियों को जगह यहां बैठने की नहीं मिली, साइज भी हो सकता है तो, लेकिन एडजस्ट होती तो हो जाती, लेकिन वो नहीं आई। सर ने 2-3 बार बोला, वो फिर उधर चले, सर जगह नहीं है सर। पता नहीं कितनी जगह चाहिए। इट हैपन्स। हम अपने आप को एडजस्ट कैसे करें? मैंने कहा नहीं तो बहुत छोटी सी जगह है, बहुत छोटे बच्चे हो आप लोग। मैंने 700-700 800 बच्चों का रेगुलर मैंने सेशन लिए ऐसे। अभी पीछे आपके बगल वाले इंस्टीट्यूट में था, उससे पीछे कहीं और था। वो रेगुलर कहीं जाने का मौका मिलता रहता है, तो आप जैसे बच्चों से मिलने का मौका जब मिलता है तो अच्छा लगता है। अब मैं लेकिन ये चाहता हूँ कि ये सेशन ऐसा ना हो कि तुम बैठे बैठे अबे कब जाएगा, बोलता ही रहेगा, सुन ली तेरी बात। तो इसलिए मैंने कहा मैं इंस्पेक्टर जरा दूसरे किस्म का हूं। तो ये सेशन चाहिए ऐसा कि हम बातचीत करें, ऐसे ही है ना, है ना? देखा, मैं पहले ही चल रहा था विशाल, ये तुम्हारे बच्चे ऐसे कह रहे सर फटाफट भगाओ। वापिस आओ मैम, से आओ। सबसे पहले तो यही निकल लिए। एनीवे, AIR FM रेनबो 102.6 मेगाहर्ट्ज शनिवार की सुबह 7 बजे से 10 बजे तक शो करने वाला इंसान कैसा दिखता है? ये आपके सामने खड़ा है, ऐसा दिखता है। हम करेंगे कुछ ऐसी बातें जिन बातों से आपके मन के अंदर के कुछ इफ बट लेकिन किंतु परंतु जाग जाएं। लेकिन उससे पहले मैं चाहता हूं आप अपने दिल की बात मुझे बताएं, ताकि हम एक दूसरे को मिलकर कुछ समाधान पर पहुंच जाएं। कुछ तुम्हारी सुने, कुछ अपनी सुनाएं। ताली बजाओ। रेडियो की क्लास हो चुकी है या होनी बाकी है? 2 बार हो गई। क्या समझ में आया? हो गई क्लास रेडियो की? क्या कुछ समझ में आया रेडियो में? बेटा अगर तुम, मैं सॉरी टू से, मैं बीच में इंटरप्ट कर रहा हूं, अगर तुम 8 बच्चे यहां आ जाओगे, नीचे आ जाओगे, ये चेयर ले लो, ये वाली, ये चेयर ले लो, ये वाली, तो मैं सिर्फ इधर आ जाऊंगा। फिर नहीं, अगर इधर आ जाओगे तो मैं इधर फिर इधर ही देखूंगा, उधर देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। शाबाश, इस लड़की ने हिम्मत दिखाई। अब यस, पीछे से निकलने का रास्ता भी है क्या? मुझे दिख ही नहीं रहा कहाँ गए बच्चे। नीचे से आएगी। आजा बेटा, इधर ही आजा मेरे बच्चे, आराम से बैठ जाओ। ये चेयर ले आओ, इधर 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 ले आओ, आगे ले आओ बेटा, यहाँ ले आओ, प्लीज प्लीज प्लीज। यस, इधर लगा दो, इधर लगा दो, जल्दी 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 जल्दी। अब पता है क्या, देख कुर्सी पर बैठी है, आगे ऊपर नहीं आई। चलो एनीवेज, हाँ जी, रेडियो कितना कहाँ तक समझ में आया? ठीक है, और रेडियो कभी भी एक ऐसा मीडियम नहीं है। क्या नाम है आपका? ठीक है, और जल्दी जल्दी बताओ, बहुत मजा आने वाला है। सर ये वाइडली इजीली लोगों तक पहुंच सकता है, जैसे कि इसमें विजुअली हम काम करते हुए भी इसको सुन सकते हैं। ठीक है, और हाँ बेटा बोलो, आप बोलो, बिना माइक के बोलो, उधर तो वहाँ तक आने में 3 साल लग जाएंगे। सर और रेडियो एक ऐसा मीडियम है जो कि बाकी मास मीडियम से सबसे ज़्यादा लोगों तक पहुंचता है, क्योंकि रूरल एरियाज में बहुत ज़्यादा
ठीक है, और हाँ, लाइक कोई भी नेचुरल क्लैमिटी या कुछ डिजास्टर होते हैं, इमरजेंसी के टाइम पे सारे कम्युनिकेशन बंद हो जाते हैं, बट रेडियो एक ऐसा चैनल है जो हमेशा चलते रहता है, मतलब उससे न्यूज़ ट्रांसफर। ठीक है, और यार माइक को रहने दो, बोलो बेटा। हाँ, सर रेडियो एक ऐसा माध्यम है जो हर लैंग्वेज, हर रीजनल लैंग्वेज में अवेलेबल है। वेरी गुड। हाँ बेटा। सर रेडियो इज अ मीडियम जिसमें आप अपनी वॉइस के थ्रू किसी को हेल्प कर सकते हो विजुलाइज करने। और गौरी। सर मुझे लगता है कि रेडियो एक ऐसा मीडियम है जो कि सिर्फ पॉलिटिकली बाउंडेड नहीं है, वो हर चीज़ की बात करने में मतलब रखता है। इतनी कि जैसे अगर हम न्यूज़ चैनल्स को देखेंगे तो या तो हिंदू मुस्लिम यही सब चलता रहता है, बट रेडियो में ऐसा नहीं है। बोल दे यार, तो क्यों शर्माना है? शर्माना नहीं है। और सब ब्लाइंड लोगों के लिए रेडियो बहुत ज़्यादा यूजफुल है। और बोलो, बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला, मैं पहले ही बोल रहा हूं। निकालो दिल की बातें अंदर से बाहर। और मुझे लगता है दिल की बातें रखने के लिए भी है। हाँ, तेरी दिल की बात निकालूं बाहर अभी। हाँ, और रेडियो में जबरदस्ती चिल्लाना नहीं पड़ता, मतलब जैसे न्यूज़ चैनल में जबरदस्ती चिल्लाना होता है। मैं पूछ रहा हूं, आखिर बताते क्यों नहीं आप? हाँ जी, और रेस्ट्रिक्शन तो है बेटा। सी एवरीवेयर देयर इज अ कोड ऑफ कंडक्ट, एवरीवेयर इज देयर। सर रेडियो जो होता है फॉर्मल वे ऑफ इतना ज़्यादा कम्युनिकेट नहीं करते, तो सामने वाला पर्सन है वो इजीली लाइक इंटरेस्ट दिखाता है और समझने की क्या नाम है आपका? खुशी। वेरी गुड। और फुल फ्लेज इंफॉर्मेशन। और सर एक बैकग्राउंड मीडियम में कुछ काम करते करते भी और जब हम ट्रैवल करते तो हम न्यूज़ को देख नहीं पाते पर रेडियो से सुन पाते हैं। क्या नाम है? सागरिका। हाय हाय। और और सर करंट न्यूज़ होती है, जो करंट हैपनिंग अभी हो रही है रिसेंट। क्या नाम है आपका? सक्षम। वेरी गुड। अब देखो, रेडियो बेसिकली आप लोगों ने जितना कुछ बताया ना, ये सच में ऐसा ही है। लेकिन रेडियो है क्या बेसिकली? कहां सुनाई दिया रेडियो? अब थोड़ी देर के लिए आप अपनी आंखें बंद करो। लड़की आंखें बंद करने के लिए बोला तेरे को मैंने? अब मेरी बातों को बेटा आंखें बंद करने के लिए बोला, मैं चांटा मार दूंगा बहुत तेज में। अब आपकी आंखें बंद हैं, मेरी आवाज के अलावा क्या सुनाई दे रहा है? और बोलो। सर पीछे बच्चे बात कर रहे हैं। गुड। और ओपन योर आइज, खोलो आंखें। कैसे पता चला ये आवाजें आ रही हैं? सुन सकते हैं। इसका मतलब कुछ ऐसा जो यहां आया है ना। रेडियो इज लाइक ऑडियो। कुछ सुना, क्या गाना, क्या इंफॉर्मेशन, क्या एक एंटरटेनमेंट, क्या आपने बोला सर जबरदस्ती नहीं चिल्लाते हैं, लेकिन कोई इंसान कुछ बोल रहा है, गाना भी चल रहा है तो बोल रहा है। गाना किसी ने पहले गाया, रिकॉर्ड हुआ, आप तक आया। रेडियो जॉकी बोल रहा है, इसका मतलब वो कुछ बोल रहा है तभी आपको सुनाई दिया। आंखें बंद हुई तो क्या पता चला? सर ये एसी की आवाज आ रही है, आ रही है। ये सबसे अच्छा एग्जाम्पल है। किसी बच्चे ने यहां बोला था कि सर वो ब्लाइंड लोगों के लिए है ना। कमरे के अंदर बिल्कुल अंधेरा पड़ा हुआ है, सुन कौन रहा है? शायर लोग बड़े बड़े अच्छे अच्छे यूज करते हैं कि सुनो कभी मेरे मन की आवाज, इस बंद कमरे में बहुत कुछ है, कि तेरी तन्हाई मेरी तन्हाई के अलावा भी बहुत कुछ है। सुनो। बंद कमरा, साइलेंट है, बिल्कुल पिन ड्रॉप साइलेंट, लेकिन क्या सुनाई दे रहा है? क्या आपको सन्नाटे की आवाज सुनाई देती है?
अगर उस दौरान में ये बॉटल तुम्हारी जो बंद है, मैंने यहां से उठा के इसको यहां रखी है, ये धमकी आवाज आई है। आपकी आंख पर पट्टी बांधी, किसी ने बोला कि अब आपको सुनना है। चोर चोरी करने के लिए दबे पांव आता है, वो आके हल्ला नहीं मचाता, इधर सामान उधर फेंक, इधर सामान, उसको पता है कोई सुन लेगा। इसका मतलब आंखों पर पट्टी है। रेडियो, कुछ सुनाई दिया, सुनाई क्या दिया? ऑडियो, कोई आवाज, वो जो गाने के रूप में रिकॉर्ड की गई, वो जो आरजे के रूप में रिकॉर्ड की गई, वो जो एडवर्टाइजमेंट के रूप में रिकॉर्ड की गई, वो जो वेदर बता रहा आपको, वो जो आपको एंटरटेनमेंट का साधन है, वो रेडियो है। इतना कुछ है रेडियो पर, एंटरटेनमेंट तो है ही। अब किसी ना किसी की एक आपके मोबाइल में एक ऐसा चैनल फिक्स होगा कि जब आप घर से निकलते होंगे आप उसी को सुनते होंगे। यस और नो? क्यों? वो तुम्हारे चाचा का लड़का है, तुम्हारे फूफा का लड़का है, और इसका मतलब एक वो चीज है जो मैं चाहता हूं वो वहां मिलती है। जैसे आप किसी एक नुक्कड़ की दुकान पे चाय पीने जाते हो, वो भले ही दुकान आपके घर से 2 किलोमीटर दूर है, वाई यू आर गोइंग? जस्ट फॉर अ टेस्ट। ये टेस्ट है कि मैं एक रेडियो चैनल वही पार्टिकुलर सुनता हूं या सुनती हूं जो मुझे पसंद है। क्यों? वो जो लड़का बोलता है ना, वो ये बातें बोलता है जो मेरे दिल जैसी है, जैसी मैं करता हूं। अबे क्या कर रहा है? वो गाने प्ले करता है जो मुझे पसंद है, इंस्टेड ऑफ कि वो आपका कोई रिश्तेदार है। ठीक है? ये रेडियो का एक ऑडियो फॉर्म है, इतना सब कुछ है। अब ऑडियो है क्या? बेसिकली कोई आवाज। तो जो आवाज के माध्यम से आपके कानों तक पहुंचा वो रेडियो है। अब आप ऑडियो देखो कैसी कैसी ऑडियो होती है। अब आपको मजा आने वाला है। आसपास कहां कहां से रहते हो बेटा? कोई दूर से आता है, कोई ऐसा 20, 22, 25, 23 किलोमीटर? रोहिणी, हापुड़, माय गॉड, हाँ, गुड़गांव और फरीदाबाद। और कोई ऐसा है जो बस हाई राइस सोसाइटी के अंदर रहता हो, जहां पर कबाड़ी वाला अंदर ही ना आता हो? है ऐसा? मतलब आप सब जहां रहते हो वहां पर कबाड़ी वाला आता है, सब्जी बेचने वाला आता है। कभी मम्मी के साथ सब्जी लेने के लिए मार्केट में गए हो? कहां जाता है? फिक्स है? चल अब ये नाक वाला बंद कर दे। क्या नाम है बेटा आपका? कनिष्ठ। इसका मतलब आपको कबाड़ी वाले का पता है। कबाड़ी वाला आपकी लेन में आता है, कैसे बोलता है? हाँ बिल्कुल ठीक है। और आवाज लगाता है, वो आवाज लगाता है, कबाड़ी कबाड़ी। एक एग्जाम्पल। दूसरा, आप सब्जी मंडी जाते हो मम्मी के पास सब्जी लेने के लिए, साथ में पापा के साथ में। अब सब्जी लिए, सब्जी वाला कैसे आवाज लगा रहा है? 5 का किलो, 5 का किलो, 5 का किलो। कभी किसी जनपद मार्केट में गए हो या कोई ऐसी बार्गेन मार्केट, एसएन, नेहरू प्लेस, सामान बिकता है? कैसे बिकता है? ले लो, टूट गया, आए हाय, आओ ना भाई साहब, ले लो, आओ ना। इन सब चीजों को देखो। दूसरा, हिजड़े देखे? गली में आते, अबे क्या उसको क्या देख रहा है? वो थोड़ी, मैं बोल रहा हूं उसको देख रहा है। मैं भाई इधर ही देख, इधर मेरी तरफ। मैंने कहा था ना मजा आने वाला, भी और भी मजा आएगा। तुझे यहां बैठा दूंगा, देख ले। तरीक मजाक कर रहा है यार ये।
वेरी गुड। चलो, वो लोग भी जब गली में आते हैं सेम, हाय हाय, आप इन सब चीजों को अभी तो हम, क्योंकि देखो ये है इंटरेस्टिंग ही, इसीलिए मजा आ रहा है, लेकिन इसमें अब रेडियो का जो एक कंटेस्ट है, जो टॉपिक है, ये समझना बहुत जरूरी है। अब इसी चीज में मेट्रो में हर कोई गया है, हर कोई सफर करता है। इतनी जबरदस्त मेट्रो भरी होती है कि पैर रखने की, लेकिन इसी मेट्रो के अंदर एक लाली ऐसी भी है जो कोने पे खड़ी है। हाँ, आ रही हूं, पहुंच जाऊंगी मैं, शाम को आ रही हूं। जो उसके पास यहां भाई खड़ा है, जो भाई इत खड़ा है, जो भाई इत खड़ा है, उसने कोना बेरा की लड़की की बात कर रही है, लेकिन वो आवाज वहां जरूर जा रही है जहां पर पहुंचनी चाहिए। ट्रू। अब मैं कहता हूं एक आम आप लोगों में से, आप लोग मेट्रो में सफर कर रहे हो और बाई चांस की बात, आप किसी से बात कर रहे हो, मम्मी का फोन आ गया, कितने बजे तक आएगी, आपकी आवाज का साउंड वो ऐसा है, अगर सामने वाला आपकी बातों पर गौर कर रहा है तो सुन लेगा कि मम्मी का फोन आया, इतने बजे घर पहुंच जाऊंगी, ऐसे घर पहुंच जाऊंगी, इतने बजे आ जाऊंगी, राइट। एक आवाज ऐसी भी है, इसी में फोन आया, हेलो, हाँ आ रहा हूं, तू खीर बना के रखियो, पहुंच रहा हूं। तीसरे डिब्बे में पता लग जाएगा शाम को घर पे क्या बनेगी। ये भी एक आवाज का एग्जांपल है। तो ऐसी भी आवाज होती है, माइट भी जो वो बंदा बोल रहा है वो इसकी रेगुलर आवाज हो, नॉर्मल, ठीक है। अब देखो मजेदार चीज, लड़कों के ग्रुप में, क्या लड़कों के ग्रुप में एक आवाज ऐसी, तू साले बोलेगा मैं तेरे को मार दूंगा, देख ले। लड़कों के ग्रुप में एक आवाज ऐसी जिसकी आवाज ये मीठी है, एक आवाज ऐसी जो फीमेल जैसी वॉइस है, ठीक है। सेम इसका फ्लिप साइड, लड़कियों के ग्रुप में एक आवाज ऐसी है, आंटी जी नमस्ते, पैरी बोनो आंटी जी। अब इसी लड़की को देखने लड़के वाले घर गए, इसी लड़की को देखने घर वाले घर, लड़का बैठा है, मम्मी बैठी है, लड़की सी आती है, आंटी जी नमस्ते। लड़की की माँ देख रही है लड़की की आवाज कहां से आ रही है, आंटी जी। वो लड़के की माँ लड़के को बोल रही, बेटा निकल ले फटाफट, हम तो बहू लेने आए थे, यहां तो तेरा दोस्त मिल गया। ये भी एग्जाम्पल्स हैं, ऐसी भी आवाजें होती हैं। इसका मतलब क्या है, जो इस तरह की आवाजें हैं, गॉड गिफ्टेड वॉइस कैन नॉट बी चेंज्ड। आप इन आवाजों को ना तो आप बदल सकते हो, ना आप इनको सुधार सकते हो, ये आवाजें ऐसी ही रहेंगी। लेकिन कबाड़ी, हिजड़े, सामान बेचने वाले, सब्जी बेचने वाले, वो अपने सामान को बेचने के लिए, सामान का और उसको काम को आगे निकालने के लिए अपनी वॉइस का यूज करते हैं। दैट्स कॉल्ड वॉइस मॉड्यूलेशंस। जो मैंने आपको हिजड़ा बताया, जो मैंने आपको सब्जी वाले बताया, आप उनके शब्दों पे जाओगे, हर लास्ट के शब्द पे एक स्ट्रेस है। हाय या पे, कबाड़ी ड़ा पे, 5 का किलो ला पे, ले लो ला पे, स्ट्रेस है। समझे? ये रेडियो है। आवाज के इतने सारे माध्यम हैं, तो इतने सारे आवाज के प्रारूप हैं आपके पास कि ऐसी ऐसी आवाजें होती हैं। अब फाइनली उस कंक्लूजन पर आते हैं कि सर अगर ये आवाजें हैं तो रेडियो पर कौन जाएगा? लड़के अक्सर लड़कियों को झूठ बोलते हैं। सुनिए मैडम, बड़े ध्यान से, मजा आने वाला है। लड़के अक्सर लड़कियों को 95%, लेकिन क्या कहते हैं, यार तेरी आवाज बड़ी अच्छी है, फोन करती रहा कर तू। हाँ, तू उसको क्या बार बार देख रहा है? सर
तू लेता बार बार उसको देखने लग जाता है। नीचे आना है हीरो, यहाँ आएगा, देख ले अब मुंडी ना घूम जाए। तो अक्सर लड़के लड़कियों को कि तेरी, देखो वहां तो पर्पस है कि आवाज अच्छी हो या ना हो बोल तो दे, ठीक है, लेकिन सच में इसका फ्लिप साइड 5% सच में आवाजें अच्छी होती हैं जो एक बार सुनने के बाद दिल करता है कि दोबारा सुनी जाए, कि जो एक बार सुनने के बाद दिल करता है कि जिनकी आवाज में अगर कोई पोयम रिसाइट कोई कर रहा है, कोई शेर पढ़ रहा है, कोई गाना गा रहा है, वो आवाज सच में अच्छी होती है। लाइक इन 5% में कोई नरेटर बनता है, कोई वॉइस ओवर आर्टिस्ट बनता है, कोई सिंगर बनता है, कोई रेडियो जॉकी बनता है और कोई पॉडकास्टर्स बनता है। ये सच में 5% वाली आवाजें हैं। माइट भी इन 5% में आप लोग हो। तो पहचानना है हमारी आवाज कैसी है। सही है? बेटा ये क्या तेरा चार्जर है? तो अपने आप को ये कुछ लोगों को, अच्छा आप लोगों के सर्किल में, आप लोगों के ग्रुप में सच में कोई ऐसा होगा जो आप कहते हो यार ये गाना बड़ा अच्छा गाता है, यार ये गाना लड़की बहुत अच्छा गाती है, कोई तो होगा। अपने आप को लगता होगा कि मैं गाना अच्छा गाता हूं या गाती हूं, लेकिन कभी टेस्ट ही नहीं किया। यस और नो? उस टेस्टिंग के लिए कुछ ऑडियो स्टूडियोज होते हैं जो मार्केट में आप जाकर वहां पर अपनी रेंज सेट कर सकते हैं। अब रेंज कैसे पता चले कि सर मेरी आवाज की रेंज कैसी है? किसी के घर में छोटा भाई बहन है? कौन है बेटा? सर भाई भी है। कितने कितने छोटे हैं? सर एक 5 साल, एक 3 साल। अच्छा क्या नाम है आपका? रोहिणी। बड़ा स्ट्रेस लगा के बोल रही है। हाँ कोई छोटा भाई कितनी छोटी है? साथ में रहती है ना यहीं? अच्छा, और किसी के घर में छोटा भाई? 2 साल छोटा बस। छोटी बहन है 6th क्लास। अच्छा, अब सच बोलना है और झूठ नहीं बोलना है, मम्मी की कसम है। जो छोटे बहन भाई जिनके हैं, आप उनको डांटते हो? मारते भी हैं, बिल्कुल सही है। अब मारने का तो छोड़ दो, लेकिन जब आप डांटने पर आते हो, फुल आवाज में डांटते हो, चली जाए यहां से, बता रही हूं तेरे को, छोड़ूंगी नहीं आज। सीखा कहां से? सीखा कहां से? ऊपर से। ये ऑटोमेटिक है, क्योंकि मम्मी पापा भी ऐसे डांटते हैं। जिस आवाज में आप अपने भाई बहन को लास्ट चीखने वाली आवाज में डांट दो, वो आपकी रेंज है। आपको पता है कि आप वहां तक ही डांट सकते हो। गिलास तोड़ दिया, पता लग गया, हो गया काम। फिर मम्मी पूछ रही है बेटा ये गला कैसे बैठा? कुछ नहीं, बस मैं क्या बताऊं, मेरे तो इस घर में कोई सुनता ही नहीं है। हाँ भाई सुनता तो है ही नहीं कोई, क्या करें। ये रेंज है वॉइस की। आई क्लियर? क्लियर है? समझ में आ रहा है? अब इसको छोड़ दो, मजा आ रहा है? वो ज्यादा जरूरी है। तो ये चीज सोचो कि आपकी वॉइस की रेंज क्या है। ये रेंज वहां तक जाती है। कोई किसी पर्टिकुलर सिंगर को जानता है? अरिजीत सिंह और अरमान मलिक और सलमान खान, राघव और सलमान खान। वो तेरे कंधे पर हाथ रखा कि तू ही बोल दे। हाँ, नौटियाल, जुबीन और लता जी और शान, सिद्धू मूसेवाला चला गया, और राहत फतेह खान। अब ये जितने सिंगर के आप नाम बता रहे हो, रिश्तेदार तो नहीं है? कभी तुम्हारे घर पे साग रोटी खाई? लेकिन आप इस सिंगर की वॉइस को इस तरह पसंद करते हो कि उसका गाना बजा और आपने पहचाना। इसका मतलब इस आवाज ने आपके यहां पर असर किया हुआ है। आपके दोस्तों में, आपके फ्रेंड सर्कल में, आपके रिलेशंस में कोई एक भैया, कोई एक दीदी,
कोई बड़े भाई, कोई ऐसे ज़रूर होंगे जिनकी आवाज़ आपको पसंद होगी, या जब वो आपको एक मेंटोर के रूप में समझाते होंगे, आपको लगता होगा भैया कितना अच्छा समझाते हैं, आप ऐसे खड़े रहते हो, जी दीदी, जी भैया। हो क्या रहा है, आप खड़े तो इसी पोजीशन में हो, लेकिन वो असर यहाँ कर रहे हैं। क्यों? कुछ करियर की बातें और कुछ घर पिला की बातें हैं। वो पोजीशन हिलती कब है? जब ये पूछ ले जाए और क्या चल रहा है, पढ़ाई, भाई मम्मी आया, अब पोजीशन चेंज हो गई आपकी। क्यों? वो सवाल आपसे गलत पूछ लिया। जब तक वो समझा रहे थे तब तक समझ में आ रहा था, तब तक वो फीडिंग थी। ये आवाज है। अब लास्ट का एग्जाम्पल बड़ा मजेदार, जो आप सबके साथ रोज घटता है। जब रात को 11 बजे फोन आता है और आप चुपचाप से, हाँ सुन रही हूँ, कल आएगी, हाँ पहुंच जाऊंगी, वो कह रहा, इस आवाज के अंदर कोई पिच नहीं है, कोई पेस नहीं है, कोई लाउडनेस नहीं है। देयर इज सिंपल सोबर वॉइस जो सिर्फ माइक के माध्यम से इधर और ये यहां ऐसा रूप लेती है। यहां इतना बड़ा रूप कैसे लिया? अगर आपके दोनों कानों में उस समय लीड है, आप कभी कभी ये पूछते हो, दोबारा बोल, क्या क्या, तो आप अंदर दबाते हो उसको। ये आप देख रहे हो, ये तो ठीक ठाक है, आप आवाज तेज करते हो उसकी, इतनी ही आवाज तेज करते हो कि घर के बाहर न चली जाए, वरना मम्मी कहेगी रात के 12 बजे तेरी कौन सी मां का फोन आता है। ये भी आवाज है। इतनी तरह की आवाजें होती हैं। अब सोचो, इतनी तरह की जो आवाजें हैं, ये रेडियो पर कहां जाएगा? अपनी वॉइस की पिच को चेक करने के लिए ऑडियो प्रोडक्शंस जितने स्टूडियोज हैं, आपको वहां पे जाके देखना पड़ेगा कि क्या मेरी आवाज सिंगिंग के तौर पर है। सिंगर का काम खत्म। लेकिन उससे पहले कि अगर मुझे रेडियो पर जाना है, तो रेडियो के लिए क्या है, ये आवाज एप्रोप्रिएट है? कुछ कुछ आप देखते हो कि बहुत ही पतली आवाज होती है। किसकी आवाज होती है ज्यादातर? बहुत पतली आवाज। लेकिन जो एक नॉर्मल वॉइस है ये वाली, इन आवाजों को भी आप पॉलिश कर सकते हो, आप इसमें हैवी टोन डाल सकते हो, आप इसके अंदर मॉड्यूलेशंस के माध्यम से, वॉइस कल्चर की कुछ एक्सरसाइज से अपनी वॉइस को हैवी बना सकते हो। लेकिन जिस तरह के मैंने आपको एग्जांपल्स दिए, वो आवाज के इसमें गड़बड़ हो जानी है। समझ में आया? इतना कुछ ठीक है? मजा आ रहा है? अब और मजे के लिए क्या करना है? सर भंगड़ा करा दो, फिर देखो हैं। अब मैं जानना चाहता हूं कि रेडियो पर इतना कुछ, अब जो मैंने सब कुछ खोल दिया, अब क्या लगता है कि सर रेडियो पर क्या होना चाहिए? नहीं नहीं, अरे बहुत कुछ है अभी बेटा, बहुत कुछ है। ब्रॉडकास्टिंग और एड्स कम होने चाहिए, और एडिटिंग भी अलग है, और रीसेंट गाने, और अच्छा, आप लोग अभी तक जो ये एफएम सुनते हो, वो आप चैनल वाले, फ्रीक्वेंसी वाले सुनते हो। क्या कभी किसी इंसान ने ऑनलाइन रेडियो सुना है? कोई सा भी ऑनलाइन रेडियो? जबकि ऑनलाइन रेडियो इस समय पूरे भारत में, इंटरनेशनल में कम से कम 4700 के आसपास हैं। पॉडकास्ट अलग चीज है बेटा। रेडियो जिंदगी ऑनलाइन रेडियो है, रेडियो खुशी ऑनलाइन रेडियो है। अगर आप कभी इस तरह के रेडियो को सुन के देखोगे, तो वहां पर एडवर्टाइजमेंट कम है। एडवर्टाइजमेंट रेडियो का बेसिकली एक कमाई का जरिया है। वो चलेगा, एड्स आएंगी, तो जो वहां पर लोग काम करने वाले हैं उनकी सैलरी मिलेगी। सिंपल। एडमिशंस होंगे तो ये चलेगा, ये सिंपल है। किसी भी दुकान के अंदर जो सामान है वो बिकेगा, तभी वो ठीक हो पाएगा, वरना बेकार।
तो इसलिए एडवर्टाइजमेंट वहाँ आपको चाहिए चाहिए। रेडियो इंडस्ट्रीज के अंदर आपको आने के लिए अब मैं जो बात आपसे कहने वाला हूं कि जिन लोगों को लगता है कि हमें रेडियो पर आना चाहिए, उनके लिए पढ़ना भी जरूरी है। कितने ऐसे चैनल्स हैं जो आप सुनते हो, अंग्रेजी वाला चैनल कोई सुनता है? कांटा लगा दो पहले ही, नहीं है। ये हमारा सच है। हम जितने चैनल सुन रहे हैं वो हिंदी के चैनल्स हैं। इस समय 11 FM के चैनल्स हैं। अब आप 91.9 से शुरू करो और 107.2 तक 11 चैनल्स हैं। इन चैनल्स में ज़्यादातर 2 चैनल को छोड़कर बाकी 9 चैनल्स हिंदी के हैं, वही सुन रहे हैं हम। जो बात यह हुई थी कि सर वो चैनल्स पर कंटेंट वो है जो हमें अच्छा लगता है। तो हमें कौन सा चैनल अच्छा लगता है? जो मेरी तरह बोल रहा है, जिसकी फीलिंग्स मेरी तरह है, जो मेरी तरह बातें कर रहा है, वो चैनल्स है। सेम ऐसा, लेकिन ये सब आपको ऑनलाइन रेडियो पर नहीं मिलेगा। ऑनलाइन रेडियो पर ज्यादातर कंटेंट सॉन्ग्स विदाउट एडवर्टाइजमेंट्स। क्यों? क्योंकि वहां पर इतनी बिक्री नहीं है। अगर मेरा चैनल बहुत अच्छा जाएगा तो मैं एक अच्छा सा ऑफिस लेकर बैठ जाऊंगा, आप लोगों को हायर करूंगा, आप लोगों से शोज करवाऊंगा। एक रेडियो का टैग लगा दिया और वो चले जा रहा है। इसीलिए ऑनलाइन रेडियो पर ये सब चीजें नहीं है। ये सब आपको एफएम पे मिलेगी। एक पार्ट इसका हो गया ये, दिस इज कॉल्ड कमर्शियल चैनल। क्या? ऊपर से लेके नीचे तक सारे कमर्शियल, मतलब एडवर्टाइजमेंट आती है। अब आपका डीएमई, DUCR, दिल्ली कम्युनिटी रेडियो, जामिया कम्युनिटी रेडियो, सबका कम्युनिटी रेडियो जो है वो कमर्शियल नहीं है। वहां पर एडवर्टाइजमेंट कम होंगी, वहां पर कंटेंट होगा तो सिर्फ आपकी एजुकेशन से रिलेटेड। उनकी रेंज यूनिवर्सिटी का दायरा। अब कोई सामान आपको बेचना है, अगर कि मैं एक एडवर्टाइजमेंट अपनी ऐड चलाना चाहता हूं, तो कौन सा चैनल चलोगे? जो ज्यादा चलेगा। ज्यादा चलने वाली फिर वो वाली चीज है कि सर एड्स बहुत आती हैं। आपकी भी एक ऐड जुड़ेगी, वो भी उसका पार्ट है। तो ये एक रेडियो का जो पार्ट है, इतनी सारी आवाजें होने के बाद तब रेडियो पर जाते हैं। अच्छा लिखना भी रेडियो का पार्ट है। सर जैसे हम रेडियो पे सब्सक्रिप्शन ऐड कर देंगे, सब्सक्रिप्शन ले लो, ऐड नहीं आएगी, जैसा बड़े-बड़े प्लेटफॉर्म्स में होता है। यूट्यूब पर ही होता है यार, स्पॉटिफाई में भी होता है, वो अलग चीज़ है ना। ऑनलाइन रेडियो है। बट हम ऐड कर सकते हैं अगर मैं और हाँ। जनरेट करना है तो। अब बहुत सारी जगह पर आप देखोगे तो इतनी सारी चीज़ों पर आप देखोगे तो ये रेडियो का जो एक चैनल है, माध्यम है, इस माध्यम पर आपको ये बताना पड़ता है। अच्छा पढ़ना, अच्छा लिखना, स्क्रिप्टिंग, जो आप कभी कभी सोचते हो कि यार रेडियो पर जो इंसान आ रहा है वो बोल रहा है, स्क्रिप्टिंग है। सब कुछ लिखा हुआ पहले से। जब हम स्क्रिप्ट लिखना सिखाते हैं तो उसके अंदर ये बताया जाता है कि आप अगर हंस भी रहे हो तो आपको पता होना चाहिए आपको कहां हंसना है, किन शब्द पर आपको स्ट्रेस लेना है, कहां से आपको शुरुआत करनी है। तो आज हम डीएमई के बच्चों के साथ बैठे हैं और डीएमई के बच्चों के साथ बैठकर लगातार जो एक सेशन चल रहा है कि रेडियो पर आने के लिए क्या करना चाहिए। कुछ बच्चे उबासी ले रहे हैं, कुछ बच्चे सोच रहे हैं सर हम निकल लो फटाफट, लेकिन हम जाएंगे नहीं, आपके साथ यहीं बने रहेंगे। इंस्टेंट आप क्या बनाओगे? हम सोचते हैं, कभी कभी मुझे लगता है कि मैं बहुत अच्छा गाना गा सकता हूं या गा सकती हूं, लेकिन क्या हम सच में गाना गा सकते हैं? इसके लिए कैसे पता चलेगा? सरगम, वॉइस, स्ट्रेस, आपका रेंज, कितना कुछ है। तो क्या कभी आपने कोशिश करी है गाने गाने की? जबकि हम सब अपने घरों के अंदर सिंगर हैं, हम सब सिंगर हैं, लेकिन जब बात आती है प्रोफेशनल वाली, सेम ये रेडियो वाले पे ही है कि हमें लगता है कि जो लड़का या लड़की रेडियो पर बोल रही है या बोल रहा है, मैं ऐसा बोल सकती हूं या मैं बोल सकता हूं। तो कोशिश करके देखिए, और अगर लगे कि कोशिश करके देखिए सर यहां उतार चढ़ा थोड़ा सा रह गया है, उसको पॉलिश कीजिए, बढ़ जाएगा काम। अच्छी स्क्रिप्ट लिखना भी जरूरी है। आप में से कोई अखबार पढ़ता है डेली? अच्छा, आप लोगों का शेड्यूल्स कैसे होता है? मतलब सुबह उठे, नहाए धोए, कॉलेज आ गए, यही है ना? रात में मोबाइल, रील्स बनाता है कोई?
अरे ये तो बड़ा कॉमन है, रील नहीं बनाते यार, ऐसा कोई हो सकता नहीं। कभी कभी ठीक है, समय निकालते ना उसके लिए। रेडियो पर आने के लिए आप यकीन करोगे, मैं आज भी डेली 4 न्यूज़पेपर पढ़ता हूँ, आज भी। और मुझे रेडियो पर 23 साल हो गए हैं। हंसराज कॉलेज, जानकी देवी, भारतीय विद्या भवन, दिल्ली यूनिवर्सिटी, टेक 1, रेडियो 18, लाइव आर, दिल्ली फिल्म इंस्टीट्यूट, आगरा, जयपुर, आजमगढ़, कानपुर, पंजाब टेक्निकल यूनिवर्सिटी, तमाम, मतलब मैं कितने नाम आपको बताऊं, मैं सब जगह पर जाकर रेडियो पढ़ा चुका हूं। पैशन है मेरा रेडियो, बेसिकली रेडियो पर जीते कैसे इंसान। अगर मैं अपने आप पे अपडेट होऊंगा तो मैं तभी तो सामने वाले को कुछ बता पाऊंगा। कल का मैच किसी ने देखा था, पाकिस्तान श्रीलंका, कौन जीता, कितने रनों से? ना देख पाओ, कम से कम इतना तो पता होना चाहिए। अफगानिस्तान श्रीलंका का मैच हुआ था पीछे, अफगानिस्तान टीम जीतते जीतते हार गई। किसी को पता होगा तो बता पाएगा। G20 हुआ, कौन सा वो प्रधानमंत्री जिसका प्लेन खराब हो गया, कितना पुराना था? पॉलिटिक्स को हटाकर थोड़ा सा न्यूज़ पर भी ध्यान है। इतना कम से कम वो कंटेंट मेरे पास इतना हो ताकि सामने वाले ने, अगर किसी लिसनर ने मुझसे सवाल कर लिया तो मैं उसके सवाल को जवाब दे पाऊं, एटलीस्ट इतना, ताकि मेरे पास कंटेंट हो। इतना। कोई गाना अगर किसी फिल्म का आपको पसंद है तो ये पता हो सिंगर कौन है, फिल्म का नाम क्या है। अगर आपको हीरोइन पता लग जाए, सोने पर सुहागा, डायरेक्टर, म्यूजिक डायरेक्टर पता लग जाए, और भी अच्छा। बताने के लिए आपने किसी की शायरी का कोई शेर पढ़ा है तो आपको पता होना किसका शेर है। कभी कभी कुछ बच्चे अपने आप भी लिखते हैं, कोई लिखता है, अच्छी बात है। आज थोड़ा थोड़ा लिखोगे, इसको लिखना लिखना लिखना, इसको क्लब करते रहो। एक दिन आप देखोगे आपके पास 300-400 पेजेस लिख गए हुए हैं, किताब में डाल दो। कुछ तो होगा कि मैंने कुछ कहीं लिखा है। कभी कभी ऐसा होता होगा कि आप जब लिखते हो सामने वाले जब दोस्तों को पढ़ के सुनाते हो, अरे क्या पढ़ा यार, मजा आ गया। ऐसा ही है ना, यही कंटेंट चाहिए हमें। सब कुछ, हमारे अल्फाज, शब्द, डिक्शन, ये सब रेडियो पर चाहिए। मैं कभी कभी जब कहीं किसी के घर जाता हूं और बहुत जगह जाने का मौका मिलता है तो एक जगह होता है, मनीष भाई ये बच्चे को ले जाओ यार, बहुत बोलता है ये, हमारी आपकी गुड़िया बड़ी हो गई, अब इसको ले जाओ अपने साथ रेडियो पर। मैं पहले ही बता देता हूं, सबसे बड़ा कांटा लगा दो। ज्यादा बोलना रेडियो पर आने के लिए एलिजिबिलिटी नहीं है। क्या रेडियो पर कोई गाली दे सकता है? क्या रेडियो पर चपर चपर जो आप सुनते हो 2 घंटा कोई बोल रहा है? क्या कोई 1 घंटा बोलता है? आप कभी, क्योंकि इतना आपका अभी रेडियो से कभी पाला पड़ा नहीं है, सिर्फ आपने FM ऑन किया, सुन लिया, 30 सेकंड से लेकर 1 मिनट तक एक आरजे बोलता है। अब आप सोच के देखिए, वो आरजे जिसको आप पसंद करते हो वो 30 सेकंड से लेकर 1 मिनट बोलता है, तब आप इसको इतना पसंद करते हो। क्यों? लेकिन वो जितना बोल रहा है अपनी बातों के अंदर वो मसाला लगाता है और उसका स्टाइल में बोलता है और वो आपको पसंद आता है। कुछ लोगों के जो कुछ मिमिक हैं, कुछ लोगों के जो प्रैंक हैं, वो पसंद आते हैं। बकरा होता था पहले एक, उसके बाद नावेद, मुर्गा, बउआ, प्रैंक कर रहे हैं जो आपको पसंद आ रहे हैं। फिर वही वाली बात है, ये प्रैंक रिकॉर्ड किए जा रहे हैं। ऐसा नहीं हुआ कि कोई इंसान उठा और जाके उसने प्रैंक कर दिया। उनकी 12-13 लोगों की टीम होती है जो वो प्रैंक डिसाइड करते हैं। आपको गाली सुनाई देती है या बीप सुनाई देती है? इसका मतलब आप रेडियो पर कुछ भी नहीं बोल सकते। सेंसलेस बातें सुनी है कभी रेडियो पर? कोई किसी को कुछ बोल रहा है, जैसे आपने न्यूज चैनल की बात करी थी, रेडियो पर वो नहीं है। जितनी देर बोला वो सेंस वाली बातें हैं। रेडियो एक वो माध्यम है जिस माध्यम से आपको लोगों को जागरूक करना है। रेडियो एक वो माध्यम है जिस माध्यम से आपको लोगों को एंटरटेन करना है।
और रेडियो एक वो माध्यम है जहां से आपको यूथ को उठाकर आगे ले जाना है। आज आपकी जो उम्र है, 5 साल के बाद आप भैया और दीदी वाली एज में आ जाओगे। यस और नो? आप जिस गली मोहल्ले में रहते हो, आज आप जिन लोगों को भैया और दीदी कहते हो, 5 साल के बाद जब नई जनरेशन जो आएगी वो आपको दीदी और भैया कहेंगी। इसका मतलब आप लोगों के रोल मॉडल बनोगे, एटलीस्ट उस गली के 4-5 बच्चों के तो बनोगे ही। अगर आपने उनको गलत फीड किया तो इसका मतलब आप गलत ही डायरेक्शन में ले जा रहे हो। क्या आप उस नई छोटी वाली जनरेशन को यह बोलोगे बेटा बंदूक चलाना बहुत अच्छी बात है, रोजाना बैग में चाकू लेकर स्कूल जाया कर और 2-4 को मार के आया कर, ये फीड करोगे आप? क्या आपको ऐसा फीड किया गया? तो जो आप अपने ऊपर अप्लाई करवाना चाहते हो वो सीखिए। आज आपके घर में आपके मम्मी पापा, थोड़ी सी कड़वी बात है, लगेगी, चुभेगी, मेरा क्या कर लोगे? आज आपके घर में आपके मम्मी पापा जो आप मांगते हो वो प्लेटर के रूप में देते हैं आपको। यस और नो? कभी जाके पूछना क्या उनको ऐसा प्लेटर के रूप में कुछ मिला था? लेकिन आपकी सारी जरूरतें पूरी कर रहे हैं। अगर इन जरूरतों को पूरी करवाने के बावजूद आप उनके सपनों को पूरा ना कर पाओ तो मेरे हिसाब से, सॉरी टू से, आपसे बड़ा क्या बोलूं मैं, मतलब इस धरती पर नहीं है। फिर यही मौका है और यही उम्र है सब कुछ करने की। मैं इसीलिए बी ओपन थोड़ा सा कड़वा बोलता हूं। मैं अपने पूरे फ्रेंड सर्कल के अंदर इसी बात के लिए बड़ा फेमस हूं कि कड़वी बातें बहुत करता है। बेटा यही उम्र है इस समय सब कुछ करने की। पढ़ाई करके अपना करियर बना लो, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड खेल लो, पढ़ाई को बिल्कुल लाइटली ले लो, माँ बाप के पैसे गड्ढे में डाल दो, क्योंकि आपके माँ बाप के पास शायद अथा पैसा है, मेरे पास तो नहीं था, आज भी नहीं है। लेकिन सपने जरूर थे कि मैं अपने माँ बाप के सपनों को जरूर पूरा करूंगा। और ये अब जिम्मेदारी आपके ऊपर है। आप लोग इतने अच्छे इंस्टीट्यूट में पढ़ रहे हो, फीस कम तो होगी नहीं इसकी। और दूसरा ऐसा भी नहीं होगा अच्छा ठीक है नहीं है फीस को छोड़ दे बेटा फिर में पढ़ ले, ऐसा भी नहीं है। बी प्रैंक, यहां तो पहले पैसे फिर एडमिशन। तो अगर इतना कुछ अगर आपको प्रोवाइड करवाया जा रहा है तो इसका फायदा उठाओ, अच्छे से मेहनत लगा के पढ़ो। मस्ती सब जगह इंपॉर्टेंट है, सभी जगह पर, लेकिन उस मस्ती के साथ साथ अपने करियर पर ध्यान दो, फोकस रहो। और जिस इंडस्ट्री के अंदर जाना है, मेरा नंबर विशाल सर से ले लेना। किसी भी एक बच्चे को किसी भी समय लगे कि सर मैं रेडियो में आना चाहता हूं या आना चाहती हूं, सर मुझे बताओ क्या करना है, मैं आपको कोरे कागज पर लिख के दे जाता हूं कि मैं पूरी मेहनत और पूरी लगन से उस बच्चे को आगे बढ़ाऊंगा। इसी वाली बात पर आज मुझे पढ़ाते हुए लगभग 8-9 साल से भी ज़्यादा हो चुके हैं, 800 से भी ज़्यादा बच्चे पढ़ा चुका हूं। अपने आप में ये कहते हैं वो फक्र होता है कि आधे से ज़्यादा बच्चे मेरे पढ़ाए हुए प्लेस्ड हैं। आज आप कोई भी बड़ा चैनल उठा के देख लो, उस चैनल पर एक स्टूडेंट मेरा काम कर रहा है। एक समय तो कुछ ऐसे भी चैनल्स रहे हैं जहां पर उनका प्रोग्रामिंग हेड तक मेरा स्टूडेंट रहा है और जो काम करने वाले वो मेरे स्टूडेंट रहे हैं। तो फिर मैंने जब शुरुआत करने से पहले मैंने एक बात बोली थी, आप कदम बढ़ाओ मैं आपके पीछे हूं। लेकिन वही है कि मैं इंस्पेक्टर जरा दूसरे किस्म का हूं। ठीक है जी, थैंक यू सो मच है। अब किसी के मन में इफ बट लेकिन किंतु परंतु आ रहा हो। सर जैसे कि मुझे रेडियो टीवी आगे अपना करियर देखना है, मैं देखती हूँ अपना, लाइक आई वांट टू बी आरजे रेडियो जॉकी। और मैं ये आपसे पूछना चाहती हूँ कि सर जब से पॉडकास्ट आया है, क्या आपको लगता है कि रेडियो के जो लिसनर्स है, जो ऑडियंस है, वो कम हो चुकी है? क्योंकि लोग ज़्यादातर पॉडकास्ट सुनना पसंद करते हैं स्पॉटिफाई पे, और स्पॉटिफाई पे ही वो लोग म्यूज़िक भी सुन लेते हैं। तो सर कहीं ना कहीं आपको ये लगता है कि रेडियो की जो ऑडियंस है, लिसनर्स है, वो कम हो गए हैं?
बनना चाहते थे उनके भी जो करियर था एज अ रेडियो वो भी कम होता जा रहा कहाँ रहती हो गौरी? है सर। दिल्ली NCR। हे लाली, फोन वापस पलट दे से। कहाँ पर? जगह का नाम बताओ। सर वैशाली वैशाली, ये पास में? वसुंधरा, हाँ वैशाली या वसुंधरा? वैशाली वसुंधरा के मिडिल में। कौशाम्बी? या यू कैन से दैट। अरे कमाल है यार, तुम मेरे को जगह का नाम बताओ, मैं तुम्हें गली का नाम बता दूंगा अभी। देखो, जहाँ पे भी रहती हो बेटा, हर जगह पर कोई ना कोई एक मार्केट है। अगर मैं एक ही लेन में एक मिठाई की दुकान खोल दूं, पहला सवाल तो लोग वहां जाएंगे। अगर वहां भीड़ मिलेगी, कहां जाएगा? मैं कहता हूं उसी दुकान के सामने दुकान खोलता हूं मैं। बताओ, दोनों दुकान बंद हो जाएंगी या दोनों दुकान ज्यादा चलेंगी? पहला सवाल का जवाब। ठीक है, जितने भी प्लेटफॉर्म्स आए, जितने भी, इसका मतलब सुनने वाले लोग तो हैं। मैं कहता हूं आज एक नया, कृष्ण आज एक नया चैनल बनाया, लेट्स सपोज एक ऑनलाइन रेडियो बनाया। आज जो नया चैनल बना है 5 लोगों ने सुना, 5। लेकिन मैं कहता हूं अगर ये बोले कि सर ये 5 लोगों को, भैया आप इन 5 को ना कल लोगों को बता देना। आपने 5 लोगों को बोला, लेकिन 5 में से 2 लोगों ने आगे रिकमेंड की, मान लिया, कितने हो गए? अगले दिन 7 हो गए। मैं कह रहा हूं अगले दिन भी 2 लोगों ने सुना, कितने हो गए? 9 से आगे 2 को जोड़ दो, कितने हो गए? यार मैं कहता हूं महीने में, मानो या मानो, 50 लोग तो हो जाएंगे। अगर एक महीने में हमें 50 लोग हो गए तो क्या साल में वो 600-700 नहीं हो सकते? तो अगर एक महीने के, एक साल के अंदर 600-700 लोग हो सकते हैं, तो इसका मतलब एक साल के बाद जब दूसरा साल होगा, यकीन मानो ये जो इंडस्ट्री है ये ऐसे नहीं चलती है, ये ऐसे ग्रो करती है। तो वो 600 1200 बनेंगे बेटा, 2000 बनेंगे। इसका मतलब सुनने वाले लोग आपके पास भी आ रहे हैं। और अगर आपका कंटेंट अच्छा है, आपकी दुकान की रसमलाई अच्छी है, तो दुनिया कुछ भी हो जाए। मैं इसका बहुत अच्छा एग्जांपल बताता हूं। मैं अपने हर क्लास के अंदर लोगों को बताता हूं ये। मुझे गोलगप्पे बड़े पसंद हैं। मुझे भी। तो गोलगप्पे का क्या हिसाब है कि एक मुझसे मिलने के लिए कोई मेरा दोस्त आता है, तो कभी कभी होता है, अरे यार बहुत दूर से, चल तुझे आज कुछ बढ़िया खिला के लाती हूँ। वो कहाँ जा रही है? अरे चल तो सही तो मेरे साथ। उसको आप अपने घर से दूर लेकर गए, 7 किलोमीटर दूर, सिर्फ क्या खिलाने? क्यों खिलाया बताओ? जबकि एक गोलगप्पे वाला आपकी गली के पीछे भी है, आप गई नहीं कि जी उसके पास 7 रंग का पानी है, कि वो जी पानी पहले ये वाला डालता है सर, फिर वो ये वाला डालता है सर, फिर ये वाला डालता है सर, क्या बोलूं वो पानी में। सेम ऐसा एक कोल्ड कॉफी पीने के लिए कहते हैं ये सीसीडी बड़ा फेमस है। अच्छी बात है जी, वो एक मार्केट के अंदर दुकान है, वो कहे ये बेकार है यार। आप उसको एक वहां लेकर गए, कोई सीसीडी नहीं है, कोई बरिस्ता नहीं है, एक ठेली पर एक कोने पर स्टॉल लगा रखी है, लेकिन वो जो बनाता है क्या अभी पिलाऊं सीसीडी? हाँ, ये टेस्ट है, ये वही टेस्ट है बेटा। अपने कंटेंट में ऐसा टेस्ट क्रिएट करो कि सामने वाला सुनने पर मजबूर हो जाए। जैसे ये बार बार पीछे क्यों देख रहा है? कुछ तो है ना पीछे, बार बार पीछे। तो कुछ ऐसा जो लोग पलट कर देखना शुरू करें। फिर वही लड़के ऐसे जा रहा है, देखो लड़का, लड़की सामने से आ रही है, कुछ तो है, तभी तो देख रहा पीछे मुड़कर, सीधा थोड़ी निकल रहा है। हाँ जी, कोई और सवाल? देखो मैंने कहा था मेरे सेशन में मजा बहुत आने वाला है। ये तो बाहर जाके बताएगा। हाँ जी, और सर जो न्यूज़ बुलेटिन होती है और जो टीवी में जो बुलेटिन आती है इसमें फर्क क्या होता है? देखो दोनों जगह पर एक सबसे बड़ा जो दायरा है वो एक समय है। टीवी पर जो न्यूज़ है सामने टेलीप्रॉम्प्टर लगा पड़ा है, आप वहां आपको टेलीप्रॉम्प्टर चल रहा है और यहां आप बैठे हुए हो।
आपको टेलीप्रॉम्प्टर पे पढ़ना है, लेकिन रेडियो पर आपके पास ये माइक है और सामने आपको देख के पढ़ना है। दोनों जगह आपकी अच्छी हिंदी, उर्दू, मतलब आपकी ज़बान साफ होनी चाहिए, सुनने वाले को कुछ लगे। ये डिक्शन की एक बड़ी अच्छी वो हम जब मैं क्लास करता हूँ, कुछ लोगों को आदत होती है, वो पढ़ता तो स्टार्टिंग वहाँ से है, लेकिन वो पढ़ते 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 लास्ट के जो 2-3 शब्द होते हैं वो खा जाता है। ऐसा ही एक प्रॉब्लम जो होती है, कुछ लोग शुरुआत तो बड़ी नीचे से करते हैं, लेकिन फिर वो ऐसे पेस बनाते हैं। जबकि हम रेडियो पर जो देखते हैं, वो खासकर बुलेटिन के लिए बता रहा हूं मैं, ये वाली बात है, ये इसको मेंटेन करके रखना पड़ता है ताकि लास्ट का जो शब्द है वो भी उसको क्लियर सुनाई दे। ये बहुत ध्यान रखना पड़ता है। जबकि आप रेडियो पर जब आप अपनी एक ओपनिंग करते हो, जब आप अपनी लिंक बोलते हो, जब अपना बाइट आप शुरू करते हो, वहां पर मॉड्यूलेशंस के और वॉइस कल्चर के हिसाब से बहुत कुछ उतर, मतलब आप ऊपर नीचे कर सकते हो मॉड्यूलेशन में। और कोई देखो, मैं फिर एक बात बोलने वाला हूँ और लास्ट में, जैसे ये भाई बहुत परेशान हो रहा बहुत देर से, ये पीछे जो बैठा तेरे, लेट जा भाई, नहीं मतलब मैं इसको भी बता रहा हूँ कि परेशान इसलिए इसको बाहर जाना है जल्दी से। मैं फिर भी यह कहना चाहता हूँ, जिसको सवाल पूछने बैठ जाओ, जिसको जाना चाहता है वो चले जाओ। अच्छा कंटेंट जनरेट करने के लिए हम आप इससे क्या क्या बहुत बढ़िया। क्या नाम है बेटा आपका? निकिता। निकिता। मैं बहुत मतलब बॉलीवुड में बहुत सारे लोगों को अच्छा, उनसे मेरा 1-to-1 कितनी बार हुआ है। राजू श्रीवास्तव के साथ मैं 2-3 बार ही रहा हूँ अक्सर। कंटेंट के ऊपर बात होती थी कि कंटेंट क्या है। अब मैं कह रहा हूँ कंटेंट आता कहाँ से है? कंटेंट किसी दुकान पर मिलता है? कंटेंट हम डेली क्रिएट कर सकते हैं। क्या हम डेली मेट्रो में सफ़र करते हैं? ये जो मैंने खीर वाली बात बताई, कंटेंट है बेटा। आप मेट्रो में सफ़र कर रहे हो, एक बहुत अच्छा स्लोगन लिखा हुआ है, कंटेंट है। किसी का अच्छा राइटअप लिखा हुआ है, कंटेंट है। आप कहीं जा रहे हो, किसी छोटे बच्चे को आपने जाते हुए देखा, कंटेंट है। सुबह सुबह एक दादा दादी या उसके दादा या दादी छोटे बच्चे को स्कूल छोड़ने के लिए जा रहे हैं, वो मना कर रहा है, नहीं जाऊंगा, रो रहा है, कंटेंट है। वो तो आपके साथ भी हुआ है भाई, आप इतने में थोड़ी आए हो, वो उसके साथ भी है, वो कंटेंट है। तो कंटेंट हमें डिसाइड करना है और फिर उसको बनाना है। अखबार, मैंने आपसे कहा जैसे आप लोग अखबार नहीं पढ़ते हो, अखबार के अंदर आप देखोगे तो उन अखबारों के अंदर न्यूज़ कम से कम लगभग 300 से 400 शब्द की होती है। मेरा बॉस मुझे कहता है, वो ऐसी न्यूज़ ली, आर्टिकल काटा, कल ऑन एयर कर दे इसको। अब ऑन एयर कर देगा मतलब क्या है? इसका मतलब वो न्यूज़ जानी है, मेरे को बोल दिया गया वो न्यूज़ पढ़नी है। अब मैं पहले उस न्यूज़ को पूरा पढ़ूंगा, पढ़ने के बाद अपने शब्दों में बनाऊंगा और फिर मैं इसमें देखूंगा कि इसके अंदर इंपॉर्टेंट क्या है, वो अपने शब्दों में लेकर अपनी स्क्रिप्ट में बनाकर ऑन एयर करूंगा। 400 शब्द नहीं जाएंगे लेकिन वो। हाँ भाई, उसी में ही यार। हाँ जी, कुछ और जो वॉइस ओवर इसे बोल लेते हैं। हाँ सर, जो वॉइस ओवर आर्टिस्ट होते हैं वो एकदम से अपनी आवाज़ एकदम पतली करते तो एकदम बढ़ा भी दे देते हैं, एकदम भारी भी कर देते हैं। सर उनका वो लाइक गले में क्या मतलब खराब नहीं होता? वॉइस मॉड्यूलेशन का पार्ट है और मुझे भी सिंगर का नाम अभी एकदम से याद नहीं आ रहा है। सर मेरे पास भी 4-5 बारी मेरी बात हुई है उससे, आने तो कभी बताता हूँ। मेल और फीमेल दोनों वॉइस के अंदर गाने गाता है वो। सर एक को मैं जानता हूँ, सुशांत दिव्यकर। मेल और वॉइस, मैं अलग में बता रहा हूँ। इसमें क्या है, ये वॉइस की प्रैक्टिस है भाई। हम बोल रहे हैं तो जितनी देर उसको बोला है, लेकिन पता है उसको यहाँ से तोड़कर उसको वहाँ बोलना है। जो एक वॉइस ओवर आर्टिस्ट है, कार्टून चैनल देखें किसी ने? कार्टून चैनल, मैं आप सबसे सवाल है ये वाला, एक ऐसा कौन सा चैनल है जिस चैनल पर आवाज़ बिल्कुल भी नहीं है लेकिन आपको सब कुछ समझ में आ रहा है क्या हो रहा है? नहीं, लेकिन मिस्टर बीन में है आवाज़ है। टॉम एंड जेरी, देयर इज नो वॉइस। मुझे इतना पसंद है, मैं इतना उसको देखता हूं। आप ये देखो उस कंटेंट के अंदर, उस कंटेंट की रिचनेस कितनी है कि आप उसको बिना सुनाई नहीं दे रहा कुछ भी, लेकिन सब कुछ समझ में आ रहा है।
आपको लगता है बार बार जेरी कैसे जी जाता है? ये कंटेंट है। तो ऐसा ही कंटेंट चाहिए वो, कि आप क्या उसमें रिचनेस डाल सकते हो, आप कैसे बढ़ा सकते हो आप। तो ये कंटेंट का एक रीच है, सुंदर कैसे बनाया जाए। और फिर जैसे अभी जैसे AI आ गया है, तो AI के आने से रेडियो में कुछ क्या कोई नुकसान या कुछ फायदा? फिर वो वाली बात है, मैं कह रहा हूं AI आ जाए, उसका बाप आ जाए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। रेडियो स्टेशंस आज भी सुन, अच्छा चलो इसी तुम्हारी सवाल का जवाब, रोहिणी नाम है ना आपका? मान्या, चलो ठीक है। अच्छा रोहिणी कौन थी यार, कहाँ चली गई? आज रेडियो स्टेशंस पर कितनी सारी मारामारी है। हर किसी को आपके घर में चलो वहां से शुरू करते हैं। बेटा खाने में कोई एक चीज बताओ, क्या पसंद है, जल्दी बताओ फटाफट, कोई एक। हैं? वेरी गुड, जल्दी। तेज बोलना, लाउड। छोले भटूरे जैसी तो है तो नहीं। बिरयानी, वेज नॉन वेज? बड़ा मजा आने वाला है, बहुत मजा आएगा। हनी चिली पोटैटो, आई मरिया। राजमा चावल, दाल राइस, लाजवा चावल, बटर चिकन, बटर चिकन, तू बटर चिकन जैसा ही है। शाही पनीर, कड़ी चावल, पनीर, कड़ी चावल, दाल चावल, पनीर। देखो बहुत मजेदार। मैं अच्छा वो किसी ने पूछ लिया वाली बात। कौन रह गई? ये दोनों स्टूडेंट हैं यार। इतनी देर से तुमने मेरी हालत खराब कर रखी थी, मैं सोचा इधर देखूं ही ना मैं। हाँ जी, पालक पनीर सबके घर में बनता है ये सोच सके जवाब देना इस समय हमारा। जो आपने नाम लिया है सबके घर में बनता है। बेटा घर में बर्गर बनता है, ठीक है। अब जो आपने नाम लिया है ये घर में बनता है, इसका मतलब आपको टेस्ट पता है कि यार ये क्या सुंदर है। अब बटर चिकन बोला किसी ने, बटर चिकन, बिरयानी, पनीर, इसका मतलब आपको ये टेस्ट पता है कि ये खाने से टेस्ट क्या है। ये लड़की ने बोला हनी चिली पोटैटो, इसका मतलब इस टेस्ट का ज्ञान आपको पता है। अब मैं कह रहा हूं जो आपने जो भी बढ़िया चीज है, भिंडी बोली थी यहां पे किसी ने, भिंडी। अगर मैं कहता हूं ये जो सब्जियां हैं आपकी जिसमें घी का तड़का लगता है, सरसों का तड़का लगा दिया, सरसों के तेल का, खा लोगे? सरसों के तेल का तड़का लगा दिया, घी की जगह सरसों का तेल यूज कर लिया, खा लोगे? खाना पड़ेगा लेकिन। एक मिनट वहीं आ जाओ, सुनो ना पहले। दूसरी बात, अब यही वाली बात को अब आपके सामने परोसा गया, ठीक है? थोड़ा सा तैयार रहियो। तू क्या नाम है तेरा? जमीर। मम्मी ने बनाया और सामने लाके परोस दिया, आपने एक टुकड़ा खाया और खाने के बाद मुंह सा बनाया और आपने बोलने की हिम्मत सी करी कि मम्मी ये क्या बनाया है? ठूस दूं तुम्हारे मुंह में? एक तो बना बना के दूं तुम्हें, एक तो ये करके दूं तुम्हें, और फिर भी खाया नहीं जा रहा। अब क्या है, वो गले के नीचे उतरेगा तो लेकिन खाना तो पड़ेगा, ठीक है? यही वाली बात को पलट दो साहब। अब आप गए जी किसी रेस्टोरेंट में, आपने यही ऑर्डर किया, वो आया और आपने खा के देखा, क्यों? ये अब आपकी मुंह जो बना है आपका, ये घर पे भी बना था, लेकिन वहां तो आप इफर बट कुछ कर नहीं सकते, वहां तो हवा में आती है। मेरे साथ होता है ना। लेकिन जब आप रेस्टोरेंट के अंदर गए, आप रेस्टोरेंट में गए और आपको पता लगा कि टेस्ट में थोड़ा सा गड़बड़ है, आपने पैर के ऊपर पैर रखा, वेटर इधर आ भाई, मैनेजर कौन है तेरा, बुलाओ उसे। आपने तो मैनेजर बुलवा लिया, उसका मालिक बुलवा लिया, किस लिए? किस लिए? किस लिए?
किस लिए? क्योंकि वहां पर वो टेस्ट जो आपको पता है कैसे बनता है वो नहीं है। इसका मतलब टेस्ट का ज्ञान आपको अच्छे से है। तो अगर मुझे मेरे टेस्ट का ज्ञान है, तो अगर मुझे मेरे रेडियो की स्क्रिप्ट का ज्ञान है कि ये खाने के बाद जो सुनेगा वो बोलेगा यार लड़का है लड़की क्या बोल रही है, ये कमाल है साहब, वो आपके टेस्ट को ध्यान रखेगा। जिसने लेकिन ये बोल दिया कि यार क्या बन रहा है खा ले, मम्मी ने कहा वो खा ले, तो फिर जबरदस्ती खा ही ले। 2 रोटी खानी है कि बेटा क्यों, एक 2 रोटी तो खाता है, यही खाई, आज मम्मी पेट भर रहा थोड़ा सा, असल बात थोड़ी बता रहा, क्या नमक बनाया तुमने ये। आप तो इतना बोल भी दोगे बेटा, पापा की तो इतनी की हिम्मत नहीं है बोलने की, सवाल ही नहीं होता। पापा तो क्या हो गया आज आप रोटी कम सिखा रहे हो, ला एक और लिया। फिर जब मम्मी चली गई बच्चों से बात हो रही, तेरी मम्मी ने क्या बनाया था, मैं तो पहले ही बोल रही थी पापा मैंने तो कम खाई एक रोटी। हाँ जी, आग में कुछ प्रॉब्लम है? समझ में आया? समझ में ज्यादा मजा आया? मजा आया? और कुछ? लाली तू भी कुछ पूछ ले, लिखी जाएगी। सर जैसे कि रेडियो में वॉइस ओवर का महत्व है और वॉइस मॉड्यूलेशन का महत्व है, उसमें एडिटिंग का क्या महत्व है? भाई कोई कैमरा संभाल लो जरा, इस लड़की के सवाल का जवाब देना है, चलेगा? क्या नाम है आपका? रिद्धिमा। रिद्धिमा, देखो एडिटिंग हम कहाँ करते हैं? सबसे पहली बात, आपके घरों के अंदर आप रोज़ाना मेड आती है काम करने के लिए, वो झाड़ू लगाती है, वो 1 घंटे के अंदर घर के सारे काम करके चली जाती है। अब पता चला आज मेड नहीं आई, आफत किसकी आई? और मम्मी ने जहाँ तुम्हारी तरफ बोला बेटा आज झाड़ू लगा दे, देखा ये जो देगा है ना बेटा, और जहां वो थोड़ा सा वहीं रुक गया, ये एडिटिंग का पार्ट है कि कहां पर जाकर मुझे रुकना है। मम्मी को जवाब हां में देना तो है, लेकिन वो कन्वर्ट ना में कैसे करा जाए, इसका सबसे अच्छा एग्जांपल बताता हूं आपको, बहुत ही बढ़िया। आज आपके साथ बड़ा मजा आ रहा है इन बच्चों के साथ। सभी एग्जाम दिए सबने, 12th के एग्जाम सभी ने दिए, 10th के एग्जाम सबने दिए, तो 10th और 12th में बोर्ड होता है। हाथ नीचे कर ले, तुझे हीरो बना दूंगा 1 मिनट में। 10th और 12th के बोर्ड होते हैं। बोर्ड होने के बाद सबसे पहला सवाल जब आप पेपर देके घर आए क्या होता है? आपका जवाब? बहुत बढ़िया, ठीक है। अब आए जी मार्क्स की बारी, आ गए मार्क्स हाथ में। अब जितने झूठ आपके पास हैं उस समय, तुम्हें क्या पता मम्मी, तुम्हें क्या पता कितना टफ पेपर आया था, तुम्हें क्या पता मैं, अरे सबके नंबर इतने आए हैं, तुम्हें क्या पता। मम्मी को तो सच में पता ही नहीं है, लेकिन आप बता रहे हो। ये सारे एक्सक्यूजेस हैं। इस समय जो आपके एक्सक्यूजेस के अंदर जो कॉन्फिडेंस है वो झूठ है, लेकिन आप उस झूठ को ऐसे रिफ्लेक्ट कर रहे हो कि वो सच है। अब आप अपने दिल पे हाथ रख के बोलो, क्या मम्मी आपकी इंस्टीट्यूट में आएगी पता करने के लिए कि भाई मेरे बच्चे के नंबर कैसे कम आए? हाँ मैडम कौन है यहां पर, इधर आ। नहीं, लेकिन आपने ऐसा उस समय एक कैरेक्टर डिजाइन कर दिया, एक सीन ऐसा बना दिया। माँ तो वैसी भोली होती है यार, वो कि हाय मेरा बच्चा देखियो खाया हुए नहीं है, चल कोई बात नहीं, जा तेरे से प्रॉब्लम होगी उस टीचर को, है प्रॉब्लम। मन ही मन में सोच रहा है अरे मैं क्या बताऊं माँ, पढ़ाई तो नहीं था मैं। अब सोचो ये झूठ आपने सच में तब बदल दिया। ये कॉन्फिडेंस नहीं है, वही चाहिए। कैसे बोलोगे? और पूछो, पूछ, तू ही पूछ ले, इसको बोल रही है। अच्छा चल मेरे कान बता दे, उसका क्वेश्चन है तो उसी को पूछने दे। हाँ बेटा, नहीं खत्म करें? हाँ देख कितनी हिम्मत दिखाई इसने, मैं खत्म करने नहीं, अच्छा पूछ ही लेती हूँ। हाँ बेटा, जैसे आपने बोला कि मतलब 1 साल बाद जैसे 500
ज़्यादा ग्रो कर रही है जितनी रेडियो की इंडस्ट्री कर रही है। ठीक है, तो फिर भी मतलब अगर कंपैरिजन करेंगे तो रेडियो कभी तो डिक्लाइन नहीं जाएगा ना। अच्छा क्या नाम है आपका? कनिका, आप डीएमई में पढ़ रही हो, जर्नलिज्म आपका कोर्स है। अच्छा, अब मैं कह रहा हूँ बीटेक वाले बच्चे की वहाँ पर दुकान लगी पड़ी है, वहाँ पर 100 बच्चे पढ़ते हैं, जर्नलिज्म में 50 बच्चे हैं, आपको किससे लेना देना है? पहला सवाल। अब इस सवाल को मैं कहता हूँ दूसरी इंडस्ट्री और ग्रो कर रही है, और ग्रो कर रही है, लेकिन मैं बीइंग एक रेडियो जॉकी होने के नाते मुझे अपने चैनल का ध्यान रखना है कि भाई मेरा चैनल ग्रो करे। 500 बढ़ गए ना, मैं सोचूंगा अगले बार 700 हो जाएं। लेकिन अगर मैं ये देखूं कि बीटेक वाले बच्चे ज़्यादा अच्छा कर रहे हैं और वहाँ अच्छे बच्चे चले गए और अपनी दुकान बंद कर दूं, प्रॉब्लम हो जाएगी। अच्छा, जैसे जर्नलिज्म वाले और बीटेक वाले बच्चे तो बिल्कुल डिफरेंट है, ठीक है। जैसे उसने स्पॉटिफाई का एग्जांपल दिया, तो स्पॉटिफाई कुछ चीज़ें तो वही कर रहा है ना जैसे जो रेडियो करता है। तो बेटा बस- स्पॉटिफाई तो एक छोटी सी चीज़ है। बट तब भी उसके ज़्यादा वो है ना। नहीं। ऑडियंस एंगेज है। देखो करेगा क्या होता है, स्पॉटिफाई तो बेटा इतनी सी चीज़ है। स्पॉटिफाई जैसे 1000 एप्लीकेशंस हैं, लेकिन 1000 एप्लीकेशंस पर कुछ लोग सच में डिफरेंट जो डाइवर्सिफिकेशन है बढ़ी हुई है। सब जगह जाएंगे लोग बाग, आपकी दुकान पे भी लोग बाग जाएंगे। सर आज भी ओल्ड एज के लोग रेडियो सुनना पसंद करते हैं, आकाशवाणी के लोग। हाँ बोलना यार। जैसे जनरेशन ग्रोथ होगी, हमारी जनरेशन जो है स्पॉटिफाई में जाता है, रेडियो में नहीं है। हमारी जो जनरेशन और आगे आएगी फिर वो हाईटेक में जाएगी, रेडियो का फिर चांसेस बहुत डिक्लाइन में चल जाएंगे एज वाइज, जनरेशन वाइज। जैसे फेसबुक से इंस्टाग्राम में आ गई, फिर ट्विटर में शिफ्ट हो गई, फिर आगे कोई नया ऐप आएगा तो उसमें शिफ्ट हो जाएंगे। तो सर वही देखो आज एक अभी वो कुछ ऐप था जो बिल्कुल रातों रात किसी ने बंद कर दिया था, वो ऐसा कोई टिकटॉक। पूना में मैम एक ऑर्गेनाइजेशन हुई और सभी रेडियो जॉकीज को कुछ चुने रेडियो जॉकीज को यूनिसेफ वालों ने बुलाया था, और वहाँ पर कुछ जो प्रेजेंटेशन हुई, कुछ लोगों को बुलाया गया, तो उसके अंदर यही दिखाया गया कि इतने सारे आज जनरेशन्स आ रही है, डिजिटल रेडियो आ चुका है, ये सब कुछ हो चुका है, तो क्या रेडियो बंद हो गया? आज आपके घर में क्या आपको या मम्मी पापा को पुराने गाने पसंद नहीं है? क्या आज आपके घर के अंदर रेडियो नहीं सुना जाता? स्पॉटिफाई चलो, लेकिन फिर बात वही है कि हमारे दिल में, हमारे चैनल में, मेरे घर में क्या पसंद है वही आएगा ना, चलेगा। मैं कहता हूं 50 नहीं 1000 एप्लीकेशंस आ जाए, मैं खुश हूं इस बात से कि और ज्यादा प्लेटफॉर्म्स आ रहे हैं लोगों को काम करने के लिए। जाएगा कौन? जिसको नॉलेज होगी। जाएगा कौन? जिसको ज्ञान होगा। जाएगा कौन? जिसको कंटेंट का पता होगा। जाएगा कौन? जो नया क्रिएटिव रोजाना बना पाएगा। तो अगर इतने सारे बड़े प्लेटफॉर्म्स हैं तो आपके पास तो अपॉर्चुनिटी है, जाइए। रेडियो पर क्या कोई यह बता सकता है कि आपको कोई सुन रहा है या नहीं सुन रहा है? नहीं। अब छोटी सी कैलकुलेशन, सब लोगों को 2 से 4 करने आते होंगे, 2 दूनी 4 सबको पता है ना। एक रेडियो चैनल्स पर, प्राइवेट चैनल्स पर आज 10 आरजेस होते हैं, 6 ऑनर होते हैं, 4 बफर में होते हैं जिनको ऑबी के लिए यूज करते हैं। तो 10 चैनल हो गए, टोटल 11। कितने हो गए? क्या 110 में से कोई एक बंदा मुझे बता सकता है कि यार मेरा शो सुना जा रहा है, नहीं सुना जा रहा है? क्या उसको पता भी है? अब मैं कहता हूं, आप बीइंग रेडियो जॉकी, आपने बोलना शुरू करा, क्या आपको पता है कितने लोग बोल रहे हैं? आपको पता आपके पड़ोस में भी चैनल है, वो भी बोल रहा है। बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे रेडियो जॉकीज। आप तो दिल्ली में रहते हो, मैं तो ऑल ओवर इंडिया ट्रैवल करता हूं। मैं जहां भी जाता हूं सबसे पहले एफएम लगाता हूं, मैं वहां के चैनल्स को सर्च मारता हूं कौन कौन से हैं। आज पूरे इंडिया के अंदर आप देखोगे लगभग कमर्शियल चैनल 4700 मैंने बताए थे आपको, कम्युनिटी रेडियो, इतने सारे रेडियो स्टेशंस हैं, इतने सारे, सब जगह चल रहे हैं और सब जगह बिक रहे हैं, हर दुकान पर माल बिकता है। तो जो भी मैं कहता हूं 1000 प्लेटफॉर्म भी आ जाएं, रीच भले ही कम हो जाए, लेकिन लिसनरशिप कम नहीं हो सकती कभी भी। एक पीछे सर्वे हुआ बहुत अच्छा और बहुत कमाल का सर्वे हुआ कि पुराने गाने लोगों को पसंद नहीं हैं, और आज जैसे आपने बोला जी हम स्पॉटिफाई में जाते हैं, आप कभी स्पॉटिफाई में सुनते हैं कि स्पॉटिफाई के अंदर भी पुराने गाने आते हैं? सर्वे किया गया 17 साल से लेकर 28 साल तक के लोग सबसे ज्यादा पुराने गाने सुनते हैं, सबसे ज्यादा। तो क्या जो गाने
आप लोगों ने तो गाने शायद 1934 वाले 40s वाले सुने नहीं होंगे। आन फिल्म, सर को पता होगा बहुत अच्छे से, मैम को पता होगा। वो एक गोल्डन एरा के जो गाने थे वो आज भी सुने जाते हैं। कभी मौका मिले तो मेरे फेसबुक वाले शोज़ पे जाइएगा, और टोटल वहाँ पर जो आपको कंटेंट मिलेगा वो बॉलीवुड का कंटेंट है, और टोटल ओल्ड रेट्रो सॉन्ग्स आपको मिलेंगे। मेरा वो शो, मतलब मैं भगवान जी का बहुत धन्यवाद करता हूँ कि वो इतना हुआ। जब मैंने पहला दिन एक शो शुरू किया था तो मुझे कभी नहीं पता था कि वो शो इतना फेमस हो जाएगा। एक जब हमने 100 कर दिए, 100 के बाद 200 कर दिए, वो 1 कंट्री, 2 कंट्री, 3 कंट्री। जब मैंने लास्ट अपना शो 600 शो मैंने पूरे किए थे, मेरा शो 38 देशों के अंदर सुना और देखा जाता था। कभी नहीं सोचा था वो इतना फेमस होगा। मेरे लिए सबसे बड़ी बात, प्लस पॉइंट, और अपने लिए कहते हैं कि कॉन्फिडेंस कैसे जनरेट होगा। रात में इंडिया के 9 रात में बजेंगे, लेकिन एक फिजी जैसी कंट्री के अंदर वहाँ 9 कब बजेंगे रात के पता नहीं है, मतलब मेरे हिसाब से। ऑस्ट्रेलिया जैसी कंट्री, कनाडा जैसी कंपनी, यूके, यूएसए, जापान, ऑस्ट्रिया, वहाँ पर इंडिया के 9 के हिसाब से वो लोग मेरा शो सुनते थे। तो मेरे लिए बड़ी बात है। अपना समय निकाल कर रात को जग जग कर लोग सुनते थे कि 1 घंटा आपका शो सुनते हैं तो हमें थोड़ा सा स्ट्रेस जो है रिलीज हो जाता है। और सिर्फ मेरे शोज़ के अंदर 6 गाने होते थे, लेकिन वो 6 के 6 ओल्ड रेट्रो सॉन्ग्स, और वही होता था उसके अंदर, वही दुनिया सुनती थी। और वो सुनते सुनते रीच बढ़ गई ऐसे। और जैसे हम देखते हैं कि बहुत सारे आरजेस जो थे, जो कि टिपिकली रेडियो से जुड़े हुए थे, अब वो इंस्टाग्राम पे आके रील्स बनाते हैं, कोई भी कॉमेडी कंटेंट है कुछ भी। तो क्या उनको वहां पर एक करियर ग्रोथ कम लग रही है, या फिर ये एक इमर्जिंग प्लेटफॉर्म? खाने में क्या पसंद आया था? कड़ी चावल। कड़ी चावल। अब जैसे मुझे गुलाब जामुन बड़े पसंद हैं, सर थैंक यू, आज आपने खिलाया। पर्सनली जैसे मुझे गुलाब जामुन पसंद है, आपको कड़ी चावल के साथ में आपको कोई दूसरी डिश भी दी जाती है खाने के लिए, नहीं खाओगे? जबकि वो मीठा है। आपको गुलाब जामुन जिस तरह से कड़ी चावल पूरी प्लेट में भर के दिए गए हैं, वैसे नहीं दिए जाएंगे। स्वीट आपको एक ही मिलेगा। एक ही दिया ना सर आपने? पूरी प्लेट भरी हुई थी खाने की, लेकिन रसगुल्ला और गुलाब जामुन उसमें एक ही था। लड़की, एक ही था वो। तो ये अगर दूसरी चीज आपको मिल रही है। दूसरी बात, आज जिस तरह से आप इंस्टाग्राम को आप एक प्लेटफॉर्म देख रहे हैं, इंस्टाग्राम जस्ट एक एंटरटेनमेंट का साधन है। जिस तरह से अब पीछे, अगर आप पीछे मेरी इस पोस्ट पे जाएंगे, ये मैंने गवर्नमेंट को लिखा था कि इंस्टाग्राम के अंदर ऐसा कंटेंट डेवलप होना शुरू हो गया था जिसके अंदर 16 साल से लेकर 22 साल तक के बच्चों को यूज किया जा रहा था कुछ गलत कंटेंट के लिए। जो कंटेंट आप बना तो रहे हो, आप घर से निकल रहे हो, आपने पूरा, जो लड़की ने चुन्नी से अपने आप को कवर कर रखा है और बाइक पर बैठ के किसी दूर पार्क में जाके वो कंटेंट बनाया जा रहा है। घर में आप सेम जैसे सुबह निकल कर गए थे वैसे शाम को घर वापस आए हो आप। लेकिन जो कंटेंट आपने बनाया है वो कंटेंट आपकी नाम से भी आईडी नहीं है, वो आपने वहां डेवलप किया है। वो कंटेंट वो है जिसके बारे में आप अपने घर में जाकर चर्चा भी नहीं कर सकते। वो कंटेंट वो है जो आप अपने रिश्तेदार पड़ोसी को दिखा भी नहीं सकते। दिखावा है ये सिर्फ और सिर्फ एंटरटेनमेंट का इतना सा साधन है। जिस तरह से रातों रात टिकटॉक बंद हो गया, मैं कह रहा हूं अगर रातों रात ये इंस्टाग्राम भी बंद हो गया, कुछ कर लोगे? तो जो आरजे वहां जा रहे हैं फैन फॉलोइंग बढ़ा रहे हैं, जिस दिन वो बंद हो गया फैन फॉलोइंग गई, खत्म वहां से सारा इनकम। सिंपल। देखो हम चीजों को समझते कैसे हैं, समझने के लिए ना आपको अपना जो माइंड है इसके ब्रैकेट को तोड़ने पहले। गवर्नमेंट ने रातों रात टिकटॉक बंद कर दिया। लोग, मतलब मैं जब कभी कहीं जाता था तो मेरे पास, मेरे पड़ोस में जो बैठा है, हाय सर मेरा नाम ये है और सर मैं इन्फ्लुएंसर हूं। तो उसने कहा इन्फ्लुएंसर क्या है? आज कहा टिकटॉकर हूं जी मैं, टिकटॉकर। मेरे सर इतने सारे उस पर फैंस हैं। तो मैंने कहा जी मेरे तो इतने फैंस कभी नहीं है, मैं तो, आप भी रील्स बनाते हैं? अब वो मेरे को रील दिखा रही है अपनी। रातों रात बंद हो गया टिकटॉक। अब मैं कहां देखूं रील? तो ये एक एंटरटेनमेंट तक के साधन तक उसको देखो, बाकी बेकार है। बट सर हमारे पास ऑडियंस तो जनरेट हो गई। मान लो अगर जो बंदे टिकटॉक में थे
उनकी ऑडियंस बन गई, उनने यूट्यूब चैनल शुरू कर दिया, उनकी टिकटॉक की ऑडियंस यूट्यूब में चली गई, और यूट्यूब की उनकी ऑडियंस है वो कोई इंस्टाग्राम में आता है, इंस्टाग्राम से अपनी ऑडियंस यूट्यूब में चलती है। ऐसा तो हो नहीं सकता कि एक रात के अंदर यूट्यूब भी बंद हो जाए, इंस्टा भी बंद हो जाए, टिकटॉक भी बंद हो जाए। हम तो कह रहे हैं बंद ना हो, मैं तो खुद ही कहता हूं ना बंद हो, कम से कम दुकान तो चल रही है। आप की जो ऑडियंस जिसको आप बता रहे हो, आपने किसी एक को नहीं देखा होगा आज तक उस पर? कहां तक सीमित है? उस जो आपका 5.5 इंच का स्क्रीन है ना, यहीं तक सीमित है। वो बंद हो गई तो एक दुकान तो बंद हो गई, दूसरी जगह चली गई, ये ऑडियंस है। लेकिन अभी तो कुछ करके दिखा दे, ये देख लेगी कंटेंट अभी तरह, ये इन लोगों को तो पता लग जाएगा तू हीरो है। अभी नहीं आएगा, बाद में आएगा। और यार मुझे जो लगता है स्क्रिप्ट तैयार करना सबसे मतलब मेरे हिसाब से बहुत टफ काम है। मैं जो रोज़ाना आज भी 4 न्यूज़पेपर पढ़ता हूँ, और क्या नाम है आपका? विनीत। यार यकीन मानोगे, मैं इतना सारा कंटेंट अपने शो बनाने से पहले अपने बॉस के पास लेके जाता हूँ। वो कहते ना देखो बॉस बॉस है, देखा क्या है ये, जबकि मुझे लगता है कि बहुत काम की चीज़ है। वो देखते ही बोलते क्या है ये, क्या है, इतनी सी न्यूज़ है कहीं, हाँ कल इसे ऑनर डालनी है। मतलब एक छोटा सा मैं आप लोगों से, सर टाइम है ना थोड़ा सा, एक छोटी सी चीज़ एग्जांपल शेयर कर रहा हूँ। और कानपुर में एक ऑटो चलाता था एक व्यक्ति, और वो ऑटो चला रहा था, ऑटो चलाते चलाते उसका कहीं एक्सीडेंट हो गया, और उसका ये जो अंगूठा था सर वो कट गया। और उसके घर में सर 3 बेटियां थी और अकेला एक वो इनकम अर्नर था। वो उसने अंगूठा पिन्नी में डाला और कानपुर के एक हॉस्पिटल में गया। उसको ये बोल दिया गया कि भाई ये अंगूठा अब आपका जुड़ेगा दिल्ली जाकर, यहाँ हमारे पास कोई साधन नहीं है। वो यहाँ पर उठकर सर गंगाराम हॉस्पिटल में डॉक्टर महेश मंगल हैं, और कभी आप लोग मिलना हो तो मेरा नाम पूछेगा उनसे, उनके पास आए और देखा तो सर उसकी जो हालत थी अब वो जुड़ने लायक नहीं थी। ये खबर अखबार में छपी, और अखबार में छपी तो फिर मैंने वो कंटेंट लिया, तो मेरे बॉस ने बोला कि ये जो ऑटो ड्राइवर है इससे बात करनी है आपको। अब मैं कहाँ ढूंढूं? लेकिन अभी मेरा टास्क है। मैं रात में, सर ने मुझे 9:30 बजे, मैंने उनको सर क्यों सुबह 7 बजे शो ऑन एयर हो जाएगा, तो अब मैं ऑन एयर जाने से पहले मेरे को उन्होंने बोल दिया कि इससे बात करनी है। मैंने रात में उस हिंदुस्तान हिंदी के ऑफिस में फ़ोन करा, वहाँ से नंबर लिया कानपुर के ऑफिस का, कानपुर के ऑफिस से नंबर लेके उस जर्नलिस्ट का नंबर लिया, और उस वाले बंदे से लेकर मैंने उस ऑटो ड्राइवर का नंबर लिया। मेरे को रात को 2:30 बज गए। 2:30 बजे उस बंदे से बात होने के बाद उसको इंश्योर किया कि मेरा शो कल सुबह 7 बजे से 9 बजे तक होगा, और 7:40 पर मैं आपसे बात करूंगा। मेरे शो में रिकॉर्डिंग कुछ नहीं है, सब कुछ लाइव। सोचो अब उस समय क्या बात हो रही है कि मेरे को ये टेंशन हो रही है कि अगर सुबह उसने नहीं उठाया तो। मैंने उसी समय बात करी, और उनको मैंने बार बार, मैं हाथ जोड़ जोड़ के, अब कैसे दिखेगा मैं रेडियो पर हाथ जोड़ रहा हूँ, फोन पर हाथ जोड़ रहा हूँ। मैंने कहा सर ऐसे ऐसे मेरा शो है। उनसे बात हुई, उस डॉक्टर महेश मंगल ने सर क्या किया, पैर की मिडिल फिंगर अंगूठे के पास वाली काटी और उसका अंगूठा बनाया। अंगूठा बनाने के बाद उस व्यक्ति को ऐसा करा क्योंकि वो अपनी फैमिली का ब्रेड एंड बटर, अर्नर जिसे कहते हैं। मैंने डॉक्टर का भी इंटरव्यू किया, मैंने उस व्यक्ति का भी इंटरव्यू किया। मुझे मेरी अचीवमेंट लगती है ये कि वो मैंने ऑन एयर किया। ऐसा ही विनीत, मैं जब, थैंक यू सर, शीला दीक्षित जी हमारी सीएम थी, और एक मुद्दे पर, दिल्ली के मुद्दे का मुझे कहा गया कि कल आपको ऑन एयर उनसे लेना है। फ़ोन कर रहा हूँ, पहली बात तो जो उनके शर्मा जी पहले पिए थे, मेरे को टरकाते गए, नहीं जी। हर 1 घंटे के बाद मैं फ़ोन कर रहा हूँ। रात के 11:30 बजे मैंने कहा सर मुझे सुबह बात करनी है, तो उन्होंने कहा आप रिकॉर्डिंग कर लीजिए। मैंने कहा ये सब कुछ लाइव है। रात को जाकर 1 बजे करीब उन्होंने मेरी मैडम से बात कराई। मैंने बोला मैम मैं सच में बहुत, मैं हाथ जोड़कर आपसे धन्यवाद बोल रहा हूँ, लेकिन मेरी एक शिकायत है, अगर आप इतनी बिजी हैं तो आपके जो लोग हैं
टाइम क्यों नहीं देते हम जैसे लोगों को? मैम ने इतनी पोलाइटली बात करी, उन्होंने कहा अच्छा मैं देख लूँगी। ये कभी कभी चैलेंजेस आ जाते हैं। और सुबह ऑन एयर, अब मुझे रात को अपने बॉस को बताना पड़ा कि सर कल मैम ऑन एयर आने वाली है। अब सुबह चर्चा है कि आज मनीष के शो में सीएम आएंगे, जबकि हमारे शो में कोई स्टूडियो में थोड़ी आता है। आप अपने घर से, मैं तो घर पे फ़ोन में बात कर लेता हूँ। तो जब आप बात कर रहे हो तो इसका अंदर सबको पता ही है ना, अब उस समय रिकॉर्डिंग सही होनी चाहिए, टेक्निकल टीम सही होनी चाहिए, आपकी वो बाइट सही जानी चाहिए। अब सुबह 7 बजे मुझे ऑन आने से पहले हमारे आकाशवाणी में, मेरे चैनल में उस समय टेक्निकल टीम 6:30 बजे पहुंची हुई थी। ये रात को 1 बजे इंफॉर्मेशन गई। तो ये कभी कभी चैलेंजेस लेने पड़ते हैं, नहीं करोगे आप रह जाओगे। जो मैंने आपको वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड वाली बात बताई, उस शो के अंदर ऐसा कोई बॉलीवुड का कोई नाम नहीं, कोई स्पोर्ट्स इंडस्ट्री का कोई नाम नहीं, सेना के बड़े आईपीएस, आईजी, कोई ऐसे लोग नहीं जिन लोगों से मैं अपने शो में बात नहीं करता था। फॉर्मेट सिर्फ रेडियो वाला सर। फ़ोन पर बात करते थे, अपने शो के अंदर मेहमान होते थे हमारे। और कुछ पूछना है? बता, मैं तो यहीं पे तो पूछ ली पहले ही, टाइम है तो। मैं तो कह रहा हूँ अगर अजय ब्रेक लेना है ब्रेक ले लो, और फिर ब्रेक ही लेना है तो ब्रेक ही ले लो। जैसे कि आप बहुत सारी यूनिवर्सिटीज में पढ़ा चुके हैं, तो आई जस्ट वांट टू टेक अ करियर गाइडेंस फ्रॉम यू। जैसे कि मुझे रेडियो में जाना है, तो आफ्टर ग्रेजुएशन व्हाट शुड आई डू टू परस्यू माय करियर ओवर देयर? बेटा बहुत ज़्यादा, एक तो आप न्यूज़पेपर पढ़ो, खूब पढ़ो। आप पढ़कर अपना ज्ञान करेक्ट करो। और मैं जब कभी रेगुलर क्लासेस मेरी जहाँ रेडियो की होती है, तो मैं अपना पर्सनल कंटेंट जो मैं बनाता हूँ अपना डेली, मैं वो रजिस्टर दिखाऊंगा अभी, अगर वैसा भी मौका मिला। कुछ ऐसी खबरें होती हैं जो आपको, आप 10 साल के बाद भी लोगे ना, वो वैसे ही रहेगी वो। तो कुछ ऐसा कंटेंट क्रिएट करना शुरू करो। पढ़ने और लिखने की आदत रेगुलर डालो, कंटेंट क्रिएट करो, देखो कहाँ पर कहाँ कुछ है। रेडियो की तरह बोलने की कोशिश करो, शब्दों पर ध्यान दो, अपने डिक्शन पर काम करो। हिंदी से ज़्यादा उर्दू पे ध्यान दें। नहीं ऐसा तो नहीं है, लेकिन उर्दू के अल्फाज है। अगर लोग बाग जिंदगी जिंदगी चिल्लाएंगे कैसे बात बनेगी, है ना? छोटी छोटी सी चीज़ें होती हैं, इन पर ध्यान रखना शुरू हो जाओगे। और मुझे यार फिर यहाँ मुझे लगता है कि यहाँ बहुत हमारे जितने फैकल्टीज़ हैं, सब कुछ आपको सब सिखाएंगे, वो बेहतर हो जाएगा। वो ध्यान देने की ज़रूरत, लेकिन ज़रूरत है, ज़्यादा और कम नहीं, ध्यान ज़रूर देना चाहिए। और कुछ दिन पहले अमरीश सर से चर्चा चल रही थी कि हमें रेडियो पे किसी को बुलाना है। बहुत सारे नाम थे, उनको बुलाते हैं। मैंने बोला मनीष जी को बुलाते हैं। मैंने बोला कि मतलब पुराने जानने वाले हैं, मुझे मालूम था कि वो कैसे पढ़ाएंगे, इसलिए मैं यहाँ रुका नहीं। इनको कैमरे से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, माइक्रोफोन से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बोले मुझे पढ़ाना है। मनीष भाई को 2010 से मैं जानता हूँ। इनकी खोज भी बड़ी विचित्र है। 2 लोगों को मैंने विचित्र तरीके से खोजा, एक अमरीश सर को और एक इनको। पुराने कॉलेज में अमरीश सर को फेसबुक से ढूंढा, बस उनकी फ़ोटो थे, अभी भी वही है। और इनको ढूंढा कि वेद प्रकाश जी थे, हमको ज़रूरत थी, तो उन्होंने सर का नाम रिकमेंड किया। मैंने सर से बोला कि मुझे बात करनी है आपसे, तो सर का जो लहजा है वो उसी तरीके से उन्होंने मुझसे कहा, बात की, और आज है अच्छी दोस्ती है, बड़े भाई हैं हमारे। और मनीष आज़ाद साहब फेसबुक में जितने इनका जो एक लाइव चलता था, बीच बीच में ज़रूर मैं पिन मारता था कि मेरा नाम लेते रहना बीच बीच में, तो लाइव शो में मेरा नाम भी लेते रहते थे बीच बीच में। सो ओवरऑल अगर आज के इस सत्र के बारे में बात करें तो आई होप कि आपको मज़ा आया होगा। पहली बार है जिसकी कमर नहीं टूट रही है आप लोगों की, तो कमर टूटती है। रेडियो है ही एक कमाल की चीज़। और जो दूसरा है भाषा की पकड़, कि भाषा किस तरीके से एक दूसरे को बांध के रखती है। थिएटर में यही एक कला है कि भाषा और बॉडी लैंग्वेज एक दूसरे को बांध के रखती है। यही चीज़ आपको सीखनी है।
सर टेलीविज़न से ताल्लुक़ नहीं है, उसके बाद किससे? रेडियो से, जो सुनने का माध्यम है, देखने का माध्यम नहीं है। उसके बावजूद भी सर आपको बांध के रखते हैं अपनी बॉडी लैंग्वेज से। जिनको भी एंकरिंग में जाना है उनके लिए बहुत उम्दा चीज़ है। क्लियर है? तो पहले तो तहे दिल से सर का शुक्रिया। अब मैं उन शख्सियत को बुलाना चाहती हूँ जिनका सरोकार रेडियो से काफ़ी साल पुराना है। हमारी हेड डॉक्टर सुष्मिता बाला मैम, वो आए और विधिवत रूप से, देखिए भाई जो करे ना करे मैम के नोट ज़रूर बनते हैं। तो मतलब ये मैं वो नहीं कह रहा, ये मैम हम लोग से भी कहते कुछ तो डायरी लेके चला करो। तो बट आप लोग बनाए ना बनाए, मैम के नोट्स रहते हैं। तो मैं विधिवत रूप से मैम से आग्रह करूँगा कि वो धन्यवाद ज्ञापन दें और इस सत्र का समापन करें। सर का सेशन कैसा लगा? बढ़िया। इंटरेक्शन था, इंटरेस्टिंग था, सीखा क्या? सर इनके पास 2 हैं रेडियो के पेपर। एक है बेसिक्स ऑफ रेडियो प्रोग्राम प्रोडक्शन और दूसरा है RJNR। तो बेसिकली आपसे के आने से पहले कुछ स्टूडेंट्स मेरे पास आए थे। मैंने कहा था इनको कि आप दोनों से कुछ भी क्वेश्चन सर से पूछ सकते हैं, फॉर्मेट्स भी बात कर सकते हैं एंड न्यूज़ रीडिंग की भी बात कर सकते हैं, न्यूज़ बुलेटिन की भी बात कर सकते हैं। कुछ क्वेश्चंस तो आए, अच्छे आए, लेकिन तुम्हारे पास और क्वेश्चंस होने चाहिए। क्यों होने चाहिए? क्योंकि तुम्हारा पेपर है ये, है ना। इसमें सर ने बहुत सारी माइन्यूट चीज़ें बताई। कुछ लोगों ने नोट की हैं, मुझे पता है, क्योंकि वो आपको कॉमनली तो पता है। प्रोनंसिएशन की बात हम करते हैं, लैंग्वेज की बात करते हैं, हम उस लैंग्वेज को यूज़ कैसे करें उसकी बात करते हैं, हम हिंदी में उच्चारण की बात कैसे करते हैं। अभी इसने कहा उर्दू। मैंने तुम्हारे सेक्शन में एक उर्दू के कुछ वर्ड्स भेजे हैं कि उनका यूज़ अपने स्क्रिप्ट में करो तो उसमें थोड़ा बेस बनेगा। जब हम उर्दू के शब्द यूज़ करते हैं, वर्ड्स यूज़ करते हैं, तो आप जैसे सर ने बोला ज़िंदगी करते रहोगे ज़िंदगी की बजाय। तो अब हमें जो भी शब्द यूज़ करने, कहाँ नुक्ता लगता है, बहुत छोटी सी बात है। छोटा सा नुक्ता आपके आवाज़ को, आपके भाषा को बहुत एनरिच कर देता है। तो हम न्यूज़ रीडिंग कर रहे हों, हम टॉक बना रहे हों, हम कोई भी फॉर्मेट बना रहे हों, केवल आपकी भाषा और उसको बोलने का तरीका। कुछ आज एक्सरसाइज, एक छोटी सी एक्सरसाइज की थी, मुझे आके सुनाया कि मैंने ये तैयार कर लिया, मैम आप सुन लीजिए। अगर आप फास्ट जा रहे हैं तो आपकी जो आवाज़ है, आपकी जो बात है, उस ऑडियंस तक नहीं पहुंचेगी जिसके लिए आप प्रोग्राम बना रहे हैं। हमारा क्या है, हमने कहा ब्लाइंड ऑडियंस, हम तो देख नहीं रहे हैं, वो हमें नहीं देख रही है, वो सिर्फ आपको आवाज़ से पहचान रही है। तो आपकी आवाज़ प्रॉपर तरीके से, जो सर ने बोला कि लास्ट जाते जाते हम डाउन हो गए, हमारी आवाज़ पूरा सेंटेंस पूरा ही नहीं हुआ, या बीच में पेस इतना कम हो गया कि उन तक हम पूरी बात पहुंचा नहीं पाए। तो हमें क्या करना है, जो भी हम बोलेंगे बैलेंस तरीके, ना तो हम फास्ट बोलेंगे ना इतना स्लो बोलेंगे कि जो हमारा बुलेटिन 5 मिनट का हम बना रहे हैं या 10 मिनट का है वो 15 मिनट तक ले जा रहे हैं। ऐसा होता नहीं है। आपका जो रेडियो है, अगर आपका बुलेटिन 15 मिनट का है तो वो 14 मिनट सम सेकंड्स में ख़त्म होना चाहिए, क्योंकि नेक्स्ट प्रोग्राम आपका दूसरे स्टूडियो से होने वाला है। वो तो अपना सिग्नेचर ट्यून शुरू कर दी उसने और आपका प्रोग्राम कट हो गया। ये हम नहीं कर सकते, तो हमें टाइम का भी मैनेजमेंट करना पड़ता है। तो आप जब भी रेडियो से रिलेटेड कुछ भी काम करेंगे तो अपनी आवाज़ की, भाषा की, प्रोनंसिएशन की, डिक्शन की पूरी तैयारी के साथ जो भी परफॉर्मेंस करेंगे वो बेटर होगी। तो हमें जो कुछ करना है द बेस्ट करना है, अच्छा बनाना है। दोनों पेपर में आप लोगों को काम करना है। जिन्होंने RJNR लिया है उनके अलावा जितने स्टूडेंट्स हैं उनको बेसिक्स ऑफ रेडियो प्रोग्राम प्रोडक्शन में फॉर्मेट्स तो बनाने ही हैं, तो इसलिए वो सबके लिए इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, ओके, थैंक यू।